Good afternoon, everybody. We are here together today to talk about a very essential aspect of sports in disability, and that is rehabilitation, physiotherapy, injury management. Each one of us have different types of bodies, different types of challenges, different types of muscle groups that function, that don't function. Sometimes we overexert a particular muscle, and because the supporting set of muscles is not there to give that power, the strength, and people in disability do end up and more prone to injuries. So physiotherapy is an integral part. It also becomes an integral part where the regular coaches have to be in touch. If I take my personal journey, it wouldn't have been complete if my gym trainer, my coach, was not in conversation with my physiotherapist. I'm very proud that today we have Gagan Shetty, who is going to be taking us through the journey and the knowledge of physiotherapy. And in his own words, I will introduce him in his own words. He says, I work with Sai Western Center as senior sports physiotherapist since last 22 years. And I have worked with able sports at various national and international competitions, but now very much part and parcel of para sports since last 4 years by working in National Para Center Gandhinagar and with national teams, especially with para athletics in various national camps and in various international tournaments like PA World Championship, Asian Championship, the recently held Para Sion Games, Jakarta. I am a national classifier in PA and TT. I have been classifying Indian para athletes under PCI guidance since last 2.5 years and are nationals and state championships. As a mission, I have classified around 1,300 para athletes in Gujarat and 700 athletes in Rajasthan, apart from doing classification at the national championships. At all the national selection trials for international meets, for example, FASA, World Championship, and disabled paramilitary personnel is now much involved in classification and selection of national team players, and in Sai NCOE Para Center as member of the Talent Identification and Development Committee, Khelo India, specific to para sports. Thank you so much for such a huge contribution to the para world. And over to you, Shetty sir. We are looking forward to your session. Thank you very much, ma'am. I am very much happy to be present with you all. As I said earlier, I am very much part and parcel of para sports fraternity. Since 2.5 years, I have been involved in giving my support in physiotherapy as well as doing classification, basically in para athletics. So you must be knowing that para athletics is one of the major para events in people sports because we have huge number of para sports persons, especially in para athletics, and there are a lot of classes or categories in. Am I audible? Yeah? Sir, louder, please. Little louder. Okay. Yeah. So, आपका सिस्टम का वॉल्यूम तो कम नहीं है, जस्ट अ सेक आप चेक करें. Volume कम है. Okay. So that's what I was telling. Since last 2.5 years, I have been involved with para sports, especially in para athletics. I'm giving my support and rehabilitation to all our injured para athletics. All the camps that are held in Gandhinagar. Gandhinagar, as you know, it is declared as the National Para Center in India. So we are having four disciplines: athletics, swimming, powerlifting, and badminton. So around 100 athletes will be taking participation in the camps and in the hostel inside Gandhinagar. So being a physiotherapist, I used to give my services, and after being nominated as a classifier by the PCI and by the IPC, so we are now acting as a national classifier. So एक सेकेंड शेट्टी सर, थोड़ा हिंदी भी ज्यादा और आवाज कम आ रही है सर. चैट में बार बार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं.
how can we increase the volume? माइक माइक उनका दूर है मैम, शायद है वो जो। हाँ माइक को आप बोलिए सर, एक मिनट। अभी ठीक आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। It's better. थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी वही बता रहा था मैडम कि बीइंग इन एज ए स्पोर्ट्स फिजियो इन द बिग सेंटर ऑफ साई गांधीनगर वेयर द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पारा स्पोर्ट्स इज गोइंग ऑन, तो उसमें हमको बहुत साइंटिफिकली हमको कैटर करना पड़ता है उनका नीड्स जो है, अपार्ट फ्रॉम फिजियोथेरेपी सर्विसेज और रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज और इलनेस और एनी प्रॉब्लम, वी हैव टू do proper way of selection of athletes and their scientific backup, all scientific tests. So we are lacking in everything. You must be aware of the fact कि हमारा जो पैरालंपिक मूवमेंट है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, और इंडिया में खास करके कुछ सालों से ही हम लोग इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और खास करके जब दिसंबर 2017 से हमारा नेशनल क्लासिफिकेशन का कोर्स हुआ अंडर द IPC थ्रू यू, उसके बाद हम कुछ नेशनल क्लासिफायर इंडिया में बन पाए, और उसके बाद उस क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। उसका पहले तो आज यू नो क्लासिफिकेशन कुछ होता नहीं था इन ए प्रॉपर साइंटिफिक और प्रॉपर वे। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता होगा कि बिना कैटेगराइज में आप किसी खिलाड़ी को किसी खिलाड़ी के साथ खिलाओगे तो ना वो कॉम्पिटेंसी का कोई आधार रहेगा, ना कोई जीतता है हारता है उसका कोई मौजूद रहेगा। जैसे सबको पता है, सपोज आपको एक 75 किलो बॉक्सर के साथ एक 50 किलो बॉक्सर को आप लड़ाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसी टाइप का हो जाता है। हमने 2.5 साल से काफ़ी देखा है इंडियन स्पोर्ट्स को, पारा स्पोर्ट्स को, खासकर के एथलेटिक्स को। मैंने नेशनल 2 अटेंड किया है और 2 साल से स्टेट मीट भी अटेंड कर रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा शुरू हुआ है और उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ PCI आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी नेशनल के लिए बुलाए जाते हैं, हम लोग कुछ 3 क्लासिफायर बुलाए गए और 1,500 से 2,000 खिलाड़ी आ जाते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई एट दैट टाइम। और क्लासिफिकेशन ये एक लंबा प्रोसेस है, आपको पता है। इंटरनेशनली 6, 8 या 10 ले लो, एक पर डे क्लासीफाई करते हैं, और हमको तो यहाँ एक लंबा लाइन रहता है जहाँ पे हजार एथलीट लाइन पे रहते हैं, और इनको क्लासिफिकेशन करना, सारे टेस्ट एग्जामिनेशन करना, सबको सारे पोजीशन में बैठा के, लेटा के, दौड़ा के ऑन द ग्राउंड, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आज जो क्लास लूँगा ऐसे कोई ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, ज़्यादा कोई डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो माइक आवाज की शिकायत आती है। आप लैपटॉप के आगे हैं या मोबाइल के आगे हैं? लैपटॉप के आगे हूँ। तो मैं तो डायरेक्ट बात करती हूँ लैपटॉप में, मतलब आई डोंट यूज दिस गैजेट्स। आप डायरेक्ट ट्राई करना चाहेंगे? हाँ वो बेटर रहेगा। अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर बेटर है। मुझे नहीं आ रहा। अच्छा अब आपका आप वॉल्यूम देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आप लोग का आवाज आ रहा है तो ठीक है। आ रहा है मैडम? हाँ आपका आवाज आ रहा है, आप चलिए, आप बोलिए। हाँ ओके थैंक यू मैम। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि क्लासिफिकेशन एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है, और इंटरनेशनली जहाँ पे 6 से 8 या 10 खिलाड़ी को पर डे कर लेते हैं, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल रहता है जब हमको बुलाया जाता है कोई नेशनल के लिए, और इतना लंबा लाइन रहता है और 1,500 से 2,000 खिलाड़ी रहते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट टू डू दैट। तो हमको ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा अंडर PCI हु हैज द मैंडेट टू डेवलप पारा स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो जहाँ पे हम ऑन ए रेगुलर बेसिस वेरी प्लानफुली, जहाँ पे ग्रासरूट लेवल से कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू एनी मीडियम, वो दैट हैज टू बी चॉक्ड आउट, और उसके बाद हम उनको स्पोर्ट्स में डालें। बिकॉज विदाउट नोइंग द क्लासिफिकेशन आप कोई भी स्पोर्ट्स में डाले उसका कोई अहमियत नहीं रहता है। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, अगर आप एक एम्पुटी को एक न्यूरो जिसका स्पेसिसिटी है, CP है, उनके साथ बैठा के खिलाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई मायने नहीं रखता है। और जितना साल एक खिलाड़ी अपना पूरा मेहनत करता है और उसका पीछे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जितना मशीनरी उनके पीछे लगे है, इतना खर्चा होता है, इतना एफर्ट लगता है, फिर रिजल्ट लास्ट को कुछ अच्छा नहीं आता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द रियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अदर थिंग्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ PCI को खास करके कि हम अभी एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके कारण बहुत सारे मिसकंसेप्शन, कंफ्यूजन भी है कि भाई ये नेशनल क्लासिफायर क्या कर सकते हैं, उनका कोई मान्य है क्या।
अभी कितना क्लासीफायर चाहिए, अभी इंटरनेशनल जाओ तो करना पड़ता तो इनका क्यों करें, वो जो है थिंकिंग उसको बदलना पड़ेगा। क्लासीफायर जो नेशनल क्लासीफायर होते हैं, जिसको जैसे आईपीसी हमको बनाया, वी हैव ए मैंडेट टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल एथलीट्स अप टू द लेवल ऑफ आवर कंट्री। हम अपना देश में कोई भी राज्यों में कहीं पे भी क्लासिफिकेशन करके हमारा कोर्स को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा हमारा मैंडेट है और हमको करना पड़ेगा। और जो लेवल 3 एंड 4 क्लासीफायर होते हैं उनको इंटरनेशनली कब बुलाया जाता है तब उनको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अगर मैं भी इंटरनेशनल क्लासीफायर बन जाऊँ इंडिया में और मैं भी स्टार्ट नहीं कर सकता, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में क्लास नहीं दे सकता, बिकॉज आईपीसी जो है वो आपको नॉमिनेट करता है फॉर एनी क्लासिफिकेशन टू डू इन इंटरनेशनल लेवल। आप कोई स्टेट में बैठ के नहीं कर सकते, तो हम स्टेट में बैठ के नेशनल क्लासिफिकेशन जरूर कर सकते हैं अपना कंट्री के अंदर, जिसमें इतने स्टेट है, इतने सारे डिसेबल पॉपुलेशन है। हम सबको कोई एक फेस्ड मैनर में क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैंने गुजरात में किया, स्टेट गवर्नमेंट अब जो गुजरात है वो काफ़ी हेल्प किया इसमें करने में, और हमको तकरीबन 1200 हमने 15 दिन में कर पाए। और जब लास्ट को मीटिंग हुआ, जब डाटा पूछे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने भाई और कितना करना है, तो जो कांति भाई है यहाँ के प्रेसिडेंट, वो बोले सर 20,000 है। तो बोले भाई जस्ट इम्पॉसिबल, अगर आपने 1200 को 15 दिन में किया तो 20,000 कब करोगे। तो इट्स ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, कोई एक आदमी का काम नहीं है। और इसके लिए हम जैसे हम पहले भी कभी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्लासीफायर हम इंडिया में कब बनाएंगे, 2.5 साल पहले बना था, फिर अब कितने बन पाएंगे, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम जो 5-6 क्लासीफायर है उनको लेके ही इंडिया में हम कुछ डेवलपमेंट कर पाएंगे, और ये कर पाएंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट ए मीडियम। तो उसमें मेरा ये राय है कि जो क्लासीफायर है उनको सबको इकट्ठा करके हम कुछ ट्रेनिंग क्लासीफायर सारे स्टेट वाइज जैसे 2-2, 3-3 बना सकते हैं, जो फिजियोस है जो दे कैन बिकम मेडिकल क्लासीफायर, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके हमारा तरफ से, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हाउ टू डू क्लासिफिकेशन। तो स्टेट जो एसोसिएशन है उनको बोल के, और जितने हमारा जुड़ सकते हैं फिजियोस एज ए क्लासीफायर, हम इनको लेके कुछ क्लासिफिकेशन शुरू कर सकते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट योर नेशनल्स, उसका पहले आपको पास एक रॉ डेटा आएगा कि भाई इतने कैटेगरीज में इतने लोग हैं इंडिया में जिनको हम ये नेशनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए ला रहे हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन बिना कोई खेलता है कोई मतलब नहीं देता है, और इंटरनेशनल जाओ तो पूरा नया लगता है कि भाई ये क्या है, मेरा कैटेगरी टोटली चेंज हो गया। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपके स्लाइड्स जब प्ले करने हो तो आप गाइड करें सैंडी को। सैंडी जी प्लीज फर्स्ट स्लाइड। आप उसको, हाँ उसको आप गाइड करते रहिएगा सर। सेकंड जी जी। ओके, so we'll talk about this. And can we just have the speaker on the screen? We can remove the other windows. Can I continue? Yes, sir. Please. No. So we'll talk about the mechanism of doing classification in the big country like India afterwards. So we'll come to the method of classification. Basically, classification is a ongoing process. अब इसमें ऐसा ख्याल है कि क्लासिफिकेशन हमको कंफर्म मिल गया तो हमको जिंदगी भर और क्लासिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा, ऐसा ठीक नहीं है। क्लासिफिकेशन चाहे कंफर्म मिले या रिव्यू मिले, ये आपको कभी भी आईपीसी की थ्रू एनपीसी आपको क्लासिफिकेशन कराया जा सकता है। कभी भी क्राइटेरिया बदलता है, कभी भी आपका इम्पेयरमेंट चेंज होता है और क्लासिफायर को देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है इन एनी कॉम्पिटिशन, तो आपको बुला के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आईपीसी कैन डू प्रोटेस्ट हिमसेल्फ। अभी उनको जरूरत नहीं है कि पीसीआई को या कोई भी एनपीसी को पूछना। उनको लगता है कि ये जो क्लास में खेल रहा है खिलाड़ी वो ठीक नहीं है, तो बुला के क्लासिफिकेशन करा सकता है। तो इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस एंड इट इज ए सिंपल स्ट्रक्चर फॉर कॉम्पिटिशन। अभी जो क्लासिफिकेशन होता है, हमने नेशनल पहले बुलाते हैं, इंटरनेशनल इवेंट का पहले बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कि सारे क्लासिफाइड हो जाए, देन कॉम्पिटिशन का लेवल एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आएगा, एक फेयर कॉम्पिटिशन हो पाएगा। बट हमको जो प्रैक्टिस करना है, हमको प्रिपेयर करना है, तब तो क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कोई क्लासिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है और कोई आईपीसी रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है। हम खुद अपना एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन मेथड कर सकते हैं और खिलाड़ी को जो भी क्लास में बनता है उसमें प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है बेसिकली फॉर ए क्लासिफायर, हम क्या है जो डिसेबिलिटी है खिलाड़ी का, उसका द्वारा जो इम्पेयरमेंट बना है, वो
कितना डिग्री का इम्पेयरमेंट है, कितना एक्सटेंट का इम्पेयरमेंट है, और वो इम्पेयरमेंट आपका एक्टिविटी या स्पोर्ट्स को कितना अफेक्ट करता है, कितना डिफिकल्टी देता है, उसको जज करते हैं और उसी हिसाब से आपको कैटेगरी मिलता है। और एक जो क्लासिफिकेशन होता है इसका एम कभी भी नहीं रहता है कि किसी को डिस्कार्ड करे, किसी को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करे, नहीं, इसको इनकरेज करने के लिए ही क्लासिफिकेशन बनाया जाता है। और वो कोई प्रॉपर इवेंट में फिट बैठता है उसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन हैज ए वेरी पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग रोल। देन कम्स ये जो क्लासिफिकेशन होता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होता है। अभी पहले भी काफी स्पीकर्स बोले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, चाहे आर्चरी हो, शूटिंग हो, सारे अच्छे तरीके से बोले क्लासिफिकेशन क्लासेस क्या होता है उनका स्पोर्ट्स में। बट मैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स बताना चाहता हूँ, मेथड्स क्या है, लोग हमारा कैसे एक गांव से डिस्ट्रिक्ट से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और हमको कैसे कैसे किया जाता है। कभी तो जैसे बड़े इवेंट में बोलते हैं आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही घबरा जाते हैं और हम ज़्यादा कोई चीज़ छुपाते हैं, कोई चीज़ बोलना नहीं चाहते हैं और एक अलग हम फेस आते हैं, वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे आपको पता है हमारा जो पैरालंपिक मूवमेंट है वो 1940 से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1944 में ये डॉक्टर लुडी गॉटमैन थे, who was the head of spinal injury center in Britain in a hospital called Stoke Mandeville Hospital। तो वो जब वर्ल्ड वॉर के बाद जितने इंजर्ड सोल्जर्स थे उनको देखा गया कि देयर वाइट फिट एंड एबल पर्सन्स, और उनको कुछ रिक्रिएशन, कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। तो ही हिमसेल्फ, द फोटो यू आर सीइंग ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द स्लाइड, ही स्टार्टेड व्हाट ही कॉल्ड स्टोक मैंडेविले गेम्स। ये 1944 से शुरू हुआ, 1948 तक चला, फिर दिस बिकम ए नेशनल इवेंट। और उसके बाद 1960 में जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोक मैंडेविले गेम्स शुरू किए इन रोम। दिस वाज ऑफरिंग इन ब्रिटेन, वो रोम में शुरू किए। और तभी से 1960 से पता चला कि पैरालंपिक या पैरा स्पोर्ट्स या डिसेबल स्पोर्ट्स कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। तो उसके बाद हम 1976 में एक ओलंपिक पैरालंपिक हुआ था, विंटर ओलंपिक्स, जिसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन करा के पैरा का शुरू हुआ। उसके बाद 1988 में सियोल पैरालंपिक गेम्स हुआ, जिसमें आपका प्रॉपर वे में पैरालंपिक गेम्स या पैरा स्पोर्ट्स चला। और 1989 में हमारा आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन हुआ 1989। तो 1989 से अभी तक 2019 हमारा 30 ईयर्स का जर्नी है, बहुत शानदार जर्नी है। और उसके बाद ही जो रियल पैरा स्पोर्ट्स, उसका कैटेगराइजेशन, उसका डेवलपमेंट सही महीने में शुरू हुआ, बिकॉज आईपीसी टुक ओवर द चार्ज। और उसके बाद 1992 में जो बार्सिलोना पैरालंपिक्स हुआ था, उसमें पहली बार फंक्शनल क्लासिफिकेशन हुआ। पहले क्या होता था, मेडिकल क्लासिफिकेशन होता था, जैसे स्पाइनल इंजरी वाले व्हील चेयर रेस कर सकते हैं, एम्पुटेड वाले ऐसे दौड़ सकते हैं। तो इट वाज डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कैटेगरी। और 1992 से पहली बार फंक्शनल वे ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, यहाँ पे स्पोर्ट्स देखा गया है कि वो एक्टिविटी स्पोर्ट्स में कितना उसका डिसएडवांटेज है और किस कैटेगरी में उसको रखना चाहिए। द फोकस बिकम्स द स्पोर्ट्स रादर देन द रिहेबिलिटेशन पार्ट। Then comes then in 2003 आईपीसी एक कमेटी बनाया जो सोचा कि इसको एक प्रॉपर मेथड साइंटिफिक वे में करना चाहिए, तो उसको ऑडिटिंग बोला। और 2007 में उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है, जो कमेटी अपना रिपोर्ट आईपीसी को दिया, जिसमें वो सुझाव दिया गया कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए एंड एक कोड बनना चाहिए इन द लाइन ऑफ एंटी डोपिंग कोड। जैसे वाडा बनाया है डोपिंग के लिए कोड, इस टाइप का कोड बनाना चाहिए जिसको सारे कंट्री जो सिग्नेटरी रहेंगे उसको मानना होगा कि इसको फॉलो करना ही करना, आपको क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा थ्रू दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो 2007 में ये जब आईपीसी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट पेश किया गया, तब उसका जनरल असेंबली सारे उसको पास किया और सारे जितने सिग्नेटरीज कंट्रीज थे सब लोग उसको एग्री किए कि हम लोग अपने कंट्री में और पूरा वर्ल्ड में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लागू करेंगे। एंड दिस वाज बिकम वेरी इफेक्टिव फ्रॉम 2010। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा हिस्ट्री कोई ज़्यादा नहीं है, 10 साल का हिस्ट्री है इन द क्लासिफिकेशन, न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम बोलते हैं, दैट इज एविडेंस प्लस
एविडेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब ये साइंटिफिकली होता है, इसमें कोई अदर वे नहीं है कि हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका जो रूल्स रेगुलेशन है, क्राइटेरिया बनाया गया है, उसी हिसाब से इम्पेयरमेंट को टेस्ट होता है। इम्पेयरमेंट का उसको एक्टिविटी करा के कोर्स करा के देखते हैं कितना डिफिकल्टी होता है, किस कैटेगरी में, किस क्राइटेरिया में वो फिट होता है। तो ये टोटली साइंटिफिक है और दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी जो सिस्टम चल रहा है, तो उसके लिए आईपीसी क्या किया है, क्लासीफायर को तैयार किया है, उनको ट्रेनिंग देकर क्लासीफायर तैयार किया। दो टाइप का क्लासीफायर होते हैं, एक होता है मेडिकल क्लासीफायर, दूसरा टेक्निकल क्लासीफायर। अभी इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ स्पीकर पहले भी बोल रहे थे। तो यूजुअली जो है मेडिकल क्लासीफायर हैज ए बिगर रोल टू प्ले इन कैटेगराइजिंग द थिंग, एंड टेक्निकल क्लासीफायर का जो रोल है वो आपको कोई इवेंट सिलेक्शन में और आपको कैटेगरी देने में कितना एक्सटेंड में मदद करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी और मूवमेंट, वो आपको बताते हैं। और जो भी है दोनों मिलके एक कैटेगरी और एक क्लास आपको देते हैं इन द पैनल। नेक्स्ट प्लीज। तो आईपीसी 2007 में एक क्लासिफिकेशन कोड बनाया। अभी जैसे बताया कि उनमें सारे एनपीसी, सारे आईओएसडी से जितने इंटरनेशनल फेडरेशन है, सारे लोग सिग्नेटरीज रहे। और 2007 में साइन करने के बाद 2008 बीजिंग पैरालंपिक गेम में ये 100 तरीका से इफेक्टिव हुआ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2008 से अभी 20 हो गया, सारे ओलंपिक्स में अभी प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन होता है और इसको इवेंट किया जाता है। आईपीसी कोड जो बनाया है, क्लासिफिकेशन कोड, बहुत सिंपल है और इजी टू बी इम्प्लीमेंटेड है और ये एविडेंस बेस्ड है। और इसमें जो खिलाड़ी का राइट्स है, जैसे कोई खिलाड़ी नहीं बोल सकता कि मेरा डिसेबिलिटी है और आपने मुझे क्लास नहीं दिया या क्यों नहीं दिया। उसमें सारे जो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट का खिलाड़ी का। उसमें अगर एलिजिबल इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो डेफिनेटली उसको कोई क्लास मिलेगा, कोई स्पोर्ट्स मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो दूसरा कोई स्पोर्ट्स में भी उसको जा सकते हैं, दूसरा कोई पारा स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट प्लीज। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं 3 स्टेप में करते हैं। पहले तो खिलाड़ी आने के बाद उसका इम्पेयरमेंट देखते हैं। उसका जो इम्पेयरमेंट है, जो प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी के द्वारा, वो कितना एक्सटेंट, कितना बड़ा है और वो कितना एलिजिबल है एज पर पारा एथलेटिक। हमारा पारा एथलेटिक में जो नॉर्म्स दिया है, जो क्राइटेरिया दिया है, उसमें एलिजिबल इम्पेयरमेंट का अभी मैं बाद में बताऊंगा, वो दे रखा है कितना 8 एलिजिबल इम्पेयरमेंट्स है प्लस 2 अलग है। तो उसमें फिट होना चाहिए। अगर वो इम्पेयरमेंट नहीं है, अगर फिंगर में कुछ स्टिफनेस है या माइल्ड फॉर्म ऑफ स्टिफनेस इन द रिस्ट और एल्बो कहीं पे भी हो, वो क्राइटेरिया को फिट होना चाहिए। तो एलिजिबल इम्पेयरमेंट फाइंडिंग करना वो पहला स्टेप है। सेकेंड है जो इम्पेयरमेंट हमको एलिजिबल इम्पेयरमेंट मिला, दैट शुड कंप्लाई विथ मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया, वी कॉल इट एज एमआईसी। एमआईसी को मीट करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। अगर मीट करता है तो ही हम थर्ड स्टेज को जाएंगे जहाँ पे हम उसको क्लास देंगे। अगर वो नहीं जाता है तो थर्ड स्टेज को कंप्लाई नहीं करता है, एलिजिबल इम्पेयरमेंट नहीं है, तो हम उसको एनी देते हैं, नॉन एलिजिबल देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी जैसे बता रहा था कि एमआईसी मिनिमम इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने बनाया है फॉर पैरा एथलेटिक्स, ये और पैरा स्पोर्ट्स यूजुअली ये सारे जो फिजिकल इम्पेयरमेंट्स और 2 अलग है, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल, तो सारे उस सब में रहता है। बट कोई स्पोर्ट्स उसको किसी इम्पेयरमेंट को इंक्लूड करता है, कोई एक्सक्लूड करता है। जैसे आर्चरी है, उनको लेग लेंथ डिफरेंस जो 7th में है, लेग लेंथ डिफरेंस अगर पेज छोटा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दे हैव एक्सक्लूडेड दैट कैटेगरी फ्रॉम आर्चरी। तो इस टाइप का हो सकता है। और ये जो 8 इम्पेयरमेंट्स है, पहला है हाइपरटोनिया, जहाँ पे आपने देखे होंगे स्पास्टिक चाइल्ड, स्पास्टिसिटी रहता है, उनको इंक्रीज इन टोन, मसल टोन रहता है। रिजिडिटी जो ज़्यादा स्पास्टिसिटी होता है वह हार्ड लगता है, इसको रिजिडिटी बोलते हैं। और डिस्टोनिया जो है थोड़ा पोस्चर और मसल जो है डिस्टोर्टेड या बहुत ही टाइट रहता है, इसको डिस्टोनिया बोलते हैं। तो ये हाइपरटोनिया, अटैक्सिया जिसको इनकोऑर्डिनेशन बोलते हैं, बैलेंस नहीं रहना, इनकोऑर्डिनेशन होना, ये अटैक्सिया बोलते हैं। एथलेटोसिस जो है अनवांटेड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, उसमें जैसे आपने देखा होगा कभी हाथ हो, पैर हो या टोटल बॉडी हो, हिलता रहता है,
हमेशा हिलता रहता है। अगर कोई काम करता है, जैसे हाथ उठाता है खाने के लिए या कुछ पकड़ने के लिए, तो ज़्यादा हिलने लगता है। दैट इज कॉल्ड एथेटोसिस। तो 3 क्राइटेरिया है जो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन है, हाइपरटोनिया है, अटैक्सिया है, एथेटोसिस है। ये आपको MIC में देखना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड क्वालिटी का है या नहीं। देन कम्स फ्रॉम ऑर्थोपेडिक या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स लाइक लिम्ब डेफिशिएंसी, मतलब लिम्ब लॉस। कोई पार्ट अगर लिम्ब्स का नहीं है तो उसे लिम्ब डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो अम्प्यूटेशन में अम्प्यूटी का होता है, या फोकोमिलिया, अगर अगर आपको फ्रॉम बर्थ कोई पार्ट डेवलप नहीं हुआ है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ पोर्शन नहीं है, तो उसको फोकोमिलिया बोलते हैं। तो 2 कैटेगरी जो है लिम्ब डेफिशिएंसी में आएंगे। देन कम्स इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। आपका जॉइंट स्टिफनेस होना होगा, चाहे कोई भी कारण से हो। अगर कुछ डिग्री से ज़्यादा स्टिफ है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो भी पैसिवली, नॉट एक्टिवली, देन वी कैन टेक दिस एज वन ऑफ द एलिजिबल इम्पेयरमेंट। देन कम्स इम्पेयर्ड मसल पावर। जैसे आप लोग को पता है टोटल मूवमेंट मसल से ही होता है, पर मसल में पावर नहीं है, टोन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये एक कैटेगरी बन सकता है इम्पेयरमेंट कैटेगरी। देन कम्स लेग लेंथ डिफरेंस। दोनों पैर का बीच में अगर रनिंग इवेंट है, स्टैंडिंग इवेंट है, अगर लेग लेंथ दोनों के बीच में मोर देन 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा, तो ये एलिजिबल इम्पेयरमेंट में आएगा। देन कम्स शॉर्ट स्टैच्यूर। ड्वार्फ जो होते हैं हाइट में छोटे, कम इनबोर्न, तो इनको शॉर्ट स्टैच्यूर बोलते हैं। ये भी एक कैटेगरी होते हैं। इनका मेजरमेंट मैं बाद में बताऊंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। और ये भी एक कैटेगरी होता है। Then apart from 8 physical impairments, there are 2 other impairments. One is visual. अगर आपका विजन लॉस है, पार्शियल विजन है, कंप्लीट विजन लॉस है, तो आप विजुअल इम्पेयरमेंट पे आप खेल सकते हैं। नहीं तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जहाँ पे जिसको आप मंदबुद्धि बोल सकते हो, आपको इंटेलेक्चुअली पुअर बोल सकते हो, उनको वो कैटेगरी दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्या है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। हमारा जो नए जुड़े खिलाड़ी है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। और इसमें क्या करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है, एक अलग नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे नहीं होता है। एक अलग आइसोलेटेड प्लेस में, जहाँ पे आप एग्जामिन कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा कुछ एक्टिविटी, कुछ मूवमेंट करके देखने के लिए, उस जगह में किया जाता है। और पहला, जैसे बताया, 3 स्टेप हमारा क्लासिफिकेशन का। पहला स्टेप हमको देखना है कि एलिजिबल इम्पेयरमेंट है या नहीं है तो कितने डिग्री का है। तो वो जो एलिजिबल इम्पेयरमेंट है, सपोज आपका एंकल स्टिफनेस है, सपोज आपका वीक शोल्डर मसल्स है, तो ये दैट शुड बी परमानेंट इन नेचर। तो अगर टेम्पररी ट्रांजिएंट स्टेट में है, कुछ दिनों में है, जैसे पेन है तो प्लास्टर है, उसके बाद मसल वीक हो जाता है, दैट इज नॉट द परमानेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट। तो एनी डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट व्हिच इज परमानेंट इन नेचर, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। नहीं तो हम कुछ एडवाइस देके छोड़ देते कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, जब कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या होगा, देन यू कम विद मेडिकल सर्टिफिकेट, हम इसको कंसिडर करेंगे स्पोर्ट्स में। और एक मेन सबसे बड़ा कारण होता है कि हेल्थ कंडीशन। ये जो इम्पेयरमेंट बना है, अभी है, वो प्रॉपर हेल्थ कंडीशन या डिजीज आना चाहिए, ना कि आपको पेन हुआ, कुछ स्टिफनेस डेवलप हो गया और उसके कारण आपको कोई भी जॉइंट में स्टिफनेस है, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो हेल्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम मेडिकल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हम खिलाड़ी से लेते हैं। यूजुअली हमारा इंडिया में क्या होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं, वो ज़्यादा कोई एक्सेप्ट गिविंग सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम, आपको ज़्यादा कोई हमको हेल्प नहीं करता है मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हमको मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आपको अगर ये डिजीज है, ये प्रॉब्लम है, तो क्या है वो प्रॉब्लम, और इसका रिसेंट असेसमेंट इंफॉर्मेशन हमको चाहिए फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर, may not be from a government one, registered medical doctor जो रिसेंटली आपको एग्जामिन करके बता पाएगा ये क्या बीमारी है, किसके लिए आपको इम्पेयरमेंट है, कितना डिग्री का है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन हमको इन एनी फॉर्म मिल जाता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। और उसके बाद मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ज़्यादातर क्लासिफिकेशन इज डन फ्रॉम द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, WPASA मैंने लिखा। तो सिमिलरली हम नेशनल क्लासिफिकेशन करेंगे तो सेम प्रोसेस है, द NPC और द PCI will conduct the classification process. To them we will receive all the information, all the medical information of the athlete.
तो मेडिकल इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हमको देखना होता है, और हमको ये देखना होता है, जैसे अभी बोला कि ओरिजिन ऑफ द इम्पेयरमेंट क्या है, इसका हेल्थ कंडीशन क्या था जिसके कारण इम्पेयरमेंट है, और वो इम्पेयरमेंट परमानेंट है या नहीं। इन IPC लेवल इट गोज टू असेसमेंट कमिटी, एलिजिबिलिटी असेसमेंट कमिटी, और कमिटी डिसाइड करता है ये एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है। उसके बाद कोई क्लासिफिकेशन पैनल को रेफर करता है। मेडिकल इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद हम एलिजिबिलिटी इम्पेयरमेंट को देखते हैं, और इसका MIC मिनिमम इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया जो रूल बुक में लिखा है, जो क्लासिफिकेशन कोड में लिखा है, कुछ इज इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक। अभी IPC ने एक हैंडबुक बनाया सबके लिए अलग अलग, चाहे एथलेटिक हो या दूसरे गेम हो, तो उसमें सारे रूल्स लिखा है। दैट बुक वी हैव टू फॉलो टू सी वेदर इट इज मीटिंग द MIC और नॉट। और उस टाइम में हमको जैसे बताया था कि एक ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, और उस टाइम में हम जितना इसका असिस्टिव डिवाइस है, या प्रोस्थेसिस हो, अस्थेसिस हो, कोई ब्रेसेस लगाया है, उसको सब खोल के हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। और विदाउट असिस्टेंस असिस्टिव डिवाइस उसका कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टिफनेस है, कितना स्पेसिसिटी है, उसको हमको प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा बताऊंगा कि क्लासिफायर का रोल क्या है। इट इज नॉट जस्ट द असेसमेंट एंड गिविंग द क्लास। उसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ द इवेंट, आपको कंडक्ट ऑफ द इवेंट, आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द इवेंट, सारे में क्लासिफायर का रोल है कि भाई ये जो क्लास था उसको क्या रिजल्ट मिला, ये जो क्लास हमने दिया था उसका इवेंट कैसे कंडक्ट हो रहा है, उसका जो टीचिंग फ्रेम बोलो या प्रोस्थेसिस हो, उसका हाइट कितना है, ये सारे चीज क्लासिफायर का काम है। तो जब IPC कोई क्लासिफिकेशन पैनल बनाता है कोई भी कंपटीशन के लिए, इनका काम कुछ एक कमिटी का पैनल का क्लासिफिकेशन पे रहता है, बाकी दूसरे पैनल का ये सारे काम में रहता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है इवेंट, और रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, और क्या क्लासिफिकेशन का इसमें कोई डिस्पैरिटी या कोई इशू है। तो allocation of sports class is not affected by low fitness level और technical skill। अगर कोई खिलाड़ी है जिसका अभी नया शुरू कर रहा है, उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और इम्पेयरमेंट ज़्यादा दिखता है या फिटनेस कम दिखता है, मोटापा है, पेन है, जितने भी इशूज है, दैट शुड नॉट अफेक्ट योर क्लासिफिकेशन। हमको जो 8 क्राइटेरिया देखना है, हमको देखना है, और उसको बहुत सारे टेस्ट के द्वारा उसको निर्धारित करना है कि वो क्लास में फिट बैठता है, वो MIC में कंप्लाई करता है या नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गगन सर, मैं आपको ये एलोकेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लास विद एज एंड लो फिटनेस एंड स्किल लेवल पे एक अपना इंसिडेंट बताऊं तो, जब मेरा इवेंट चेंज हो गया था फ्रॉम जैवलिन टू शॉटपुट, और मैं ये कहती थी एम आई इन द राइट क्लास, एम आई इन द राइट क्लास, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा तो अभी बहुत पीछे गिरता है, 4 मीटर प्लस गिरता था सबका। एंड रूडी एक क्लासिफायर है, बहुत फेमस क्लासिफायर है इंटरनेशनली, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि दीपा, इट इज नॉट अबाउट योर एज एंड इट इज नॉट अबाउट anything to do with, you have to improve your fitness level, yes, and you have to improve your skill level। yes, तो yes. आप सही मेडिकल क्लास में हैं, लेकिन आपका फिटनेस लेवल बहुत कम है, इसलिए आप सोच रही हैं कि आपकी क्लास ठीक नहीं मिली है। एंड आई थिंक दैट स्टेड विथ मी, और मैंने फिर अपना फिटनेस लेवल और अपना स्किल डेवलपमेंट किया, एंड ऑफ कोर्स आई कुड मेक दैट बिग मेडल फॉर कंट्री इन शॉटपुट। तो ये अक्सर मैंने देखा है एथलीट्स को कंप्लेन करते हुए कि मेरा तो क्लास सही नहीं है, जबकि कई बार मेडिकली क्लास बिल्कुल सही होती है। वो लोग अपनी स्किल को डेवलप करने में कमी रखते हैं, या फिर अपना फिटनेस एंड मसल पावर लेवल को पूरा यूज नहीं करते हैं। तो दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट, एंड ये इससे मैं खुद भी गुजरी हूँ। तो इट वाज रियली नाइस टू गेट दिस पॉइंट। प्लीज कंटिन्यू सर। या थैंक यू मैम। मैं वही बोल रहा था कि अगर आपका जो भी एनहांस्ड स्किल लेवल हो, या एज हो, ज़्यादा एज हो, कम एज हो, वो क्लासिफिकेशन प्रोसेस में कोई मायने नहीं रखता है। वी हैव टू सी द डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट, और उसका कितना डिग्री में कंप्लाई करता है वही देखना है। तो ये सारे चीज़ जो है, चाहे एनहांस्ड स्किल हो या लो लेवल का स्किल हो, तो बाद में खिलाड़ी अपना बढ़ा सकता है या कम हो सकता है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है प्रॉपर वे में। तो ये खिलाड़ी को बाद में देखना है, और ये उसको आगे लेके जाएगा इन द स्पोर्ट्स। बट क्लासिफिकेशन हमको ये सारे चीज़ हटा के हमको क्लासिफिकेशन करना है कि प्रॉपर क्लास देना है, उसका जो बेसिक डिसेबिलिटी है उसका बेस पर।
तो जब भी खिलाड़ी आता है आपको क्लासिफिकेशन के लिए, ही और सी हैज टू साइन एन एथलीट इवैल्यूएशन एग्रीमेंट फॉर्म। तो जो हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं नेशनल क्लासिफिकेशन लेवल में, हमारा फॉर्म है और उनका 8 पेज एक फॉर्म है जिसमें आपको साइन करना है कि आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड व्हाट एवर क्लास इज गिवन टू मी आई विल एक्सेप्ट इट। तो कोई पहले कोई पैनल में बोल रहे थे कि नहीं, हमको अगर एनी मिला तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट में जाएंगे। नहीं, अभी मैं बाद में बताऊंगा, अगर आपको एनी मिला तो आप प्रोटेस्ट में जा नहीं सकते और आपको साइन करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे एनी मिला। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आ सकते हैं या मानोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एथलीट शुड कंप्लाई ऑल रीजनेबल इंस्ट्रक्शन गिवन। और हमारा जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, जैसे पहले ही बताया था, पहले हम फिजिकल टेस्ट करते हैं डिसेबिलिटी का और उसका सारे इम्पेयरमेंट का। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट होता है, जो आपका जो एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है या मूवमेंट्स रिलेटेड है, उसको हम टेस्ट करके देखते हैं। सपोज आप वॉकिंग करो, सपोज आप सामने जॉगिंग करो, सामने आप थ्रोइंग एक्शन करो, आप बैलेंस इन वन लेग और डबल लेग करो, ये सारी एक्टिविटी हम टेक्निकल असेसमेंट में देखते हैं। अगर इससे हमको क्लास कंप्लाई करने में या क्लास मिलने में दिक्कत हो रहा है, देन ओनली वी गो टू ऑब्जर्वेशन इन कॉम्पिटिशन असेसमेंट। उसको वो बोलते हैं हम, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट। वो कॉम्पिटिशन लेवल, कॉम्पिटिशन का टाइम में ही होता है, जहाँ पे क्लासिफायर जाके अपना दूर बैठ के इसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो देख सकता है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं खिलाड़ी कैसे दौड़ता है, कैसे परफॉर्म करता है, और वेदर ही इज यूजिंग सर्टेन मसल्स और सर्टेन मूवमेंट्स जो वहाँ पे वो नहीं शो कर रहा था, जो शो कर रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव टाइम है तो वो फुल एफर्ट में करते हैं। तो उसको हम टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओए। और ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। जब भी आपको कोई क्लास, सपोज आपका पास एक खिलाड़ी है, उसका हमने क्लास देख के ही कंपटीशन भेजना पड़ेगा, हमको बिना क्लास में कोई कंपटीशन में भाग ही नहीं ले सकता। तो सपोज इसको T42 पहले दिया था और T42 के साथ हम OA लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट। देन द इवेंट मैनेजमेंट जो है, इवेंट मैनेजर है, वो आपको टेक्निकल डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपको अलाउ करेगा कि ये कंपटीशन इवेंट में आप भाग ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद है आपको जो हम स्पोर्ट्स क्लास देते हैं, उसके साथ एक स्पोर्ट्स क्लास स्टेटस देते हैं, दैट इज ए मस्ट। क्योंकि काफ़ी सारे इम्पेयरमेंट जो है चेंज होता है, और आपका जैसे अभी बताया आपने स्किल और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होता है, तो आपको क्लास चेंज होने को जैसे होता है, ऐसा आपको फील होता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक स्टेटस दिया जाता है कि सपोज आपका एक परमानेंट, जैसे अम्पुटेशन है, आपका अम्पुटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी है, उसका हम C देकर छोड़ देंगे कन्फर्म, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल केस है जिसको हमको लगता है कि ये कुछ महीनों, कुछ सालों में ये चेंज होने वाला है इसका कंडीशन, तो हम रिव्यू देते हैं। तो कोई ना कोई स्टेटस आप लिख के देना ही पड़ेगा, और वो आप प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद, जजमेंट करने के बाद ही देते हैं। So there are only 3 type of status we give with the class. One is confirm, C, review, R, or RFRD, review with fixed review date. आपको कभी भी नेक्स्ट सीजन में हो, नेक्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल कंपटीशन हो, या उसके बाद भी जब तो आपको लगता है कि नहीं ये 6 महीना में या साल में ये इसका जो है डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट फिक्स हो जाएगा, इतना फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, तो आपको FRD दे के छोड़ना है। और वो खिलाड़ी को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि नेक्स्ट कंपटीशन बिफोर दिस ड्यू डेट यू शुड डू योर री इवैल्यूएशन अगेन फ्रॉम ए डिफरेंट पैनल। नेक्स्ट प्लीज। देयर आर डिफरेंट क्लासेस। एक होता है न्यू, इन लिखा जाता है न्यू क्लास। ये कोई क्लास नहीं है, इसका जैसे बोला कि हमारा 3 क्लास है, सॉरी 3 क्लास स्टेटस है। ये न्यू कोई स्टेटस नहीं है। ये न्यू तभी दिया जाता है जैसे कोई आपकी रजिस्ट्रेशन करवाया क्लासिफिकेशन के लिए, और उसको हम उसका एक कार्ड में इन लिख के देते हैं, सो दैट बिफोर द पैनल सीट्स फॉर हिज हर कंफर्मेशन, वो तब तक इन रहे, न्यू रहे। उसके बाद C अभी बताया कंफर्म क्लास होता है, और कंफर्म स्टेटस कैन बी चैलेंज बाय प्रोटेस्ट ऑल्सो। अभी हमने कंफर्म किया है, मगर अगर अदर खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो दे कैन पुट प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू। तो कंफर्म क्लास के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो सकता है।
और रिव्यू का तो री-इवैल्यूएशन होता ही है। तो एथलीट्स गिवन रिव्यू स्टेटस इस फेल्ड फर्दर सेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर उसको लगता है कि ये इसका कंडीशन फ्लक्चुएटिंग है, प्रोग्रेसिव है, नॉट स्टेबल, तो हम आर देके छोड़ते हैं, सो दैट उसको बाद में कंफर्मेशन मिल सकता है। अब रिव्यू फिक्स्ड डेट मैंने बताया कि हम असेसमेंट करके देखते हैं कि कितना, सपोज कोई 18 साल होने वाला है, एडोलेसेंट है, और जैसे डार्क केस में है, और जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल या दूसरे कंडीशन में है, तो अगर हमको लगता है कि 18 साल के बाद ये कंडीशन फिक्स हो जाएगा, तो हम ऐसे डेट देते हैं जैसे उसका 18 साल उसी टाइम एंड डेट में पूरा हो, और उसी के बाद वो क्लासिफिकेशन करे इन ए ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड AFRD। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपको एनी दिया गया है, एनी दो स्टेज में, दो केस में दिया जाता है। अगर आपका एलिजिबल इम्पेयरमेंट नहीं है, और क्या या आपको एलिजिबल हेल्थ कंडीशन नहीं है, डिजीज कंडीशन नहीं है, तो आपको एनी मिलता है। और नॉन एलिजिबल एक बार मिला तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि ये टोटली प्रेरोगेटिव है क्लासीफायर का कि वो जो टेस्ट करके देखा उसमें आप एनी आए हैं। मगर एनी के लिए एक दूसरा सिस्टम है। अगर आप इसको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते उस टाइम में, बट विद अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर प्रूफ आप री इवैल्यूएशन के अप्लाई कर सकते हैं थ्रू PCI इन आवर केस। और वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स उसको तब तक एनी आर करके रखता है, रिव्यू में रखता है कि ठीक है हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसका आगे, उसका हेल्थ कंडीशन भी एलिजिबल लगता है और उसके इम्पेयरमेंट पे एलिजिबल लगता है, तो आपको एनी आर में रखता है और आपको नेक्स्ट डेट देता है जहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करने को मौका मिलेगा। वहाँ पे अगर आपको क्लासिफिकेशन में आप फेल हुए, इन द सेंस कि आपको एलिजिबल इम्पेयरमेंट वगैरह नहीं मिला, तो आपको NEC दिया जाता है। फिर तो आप वो स्पोर्ट्स के लिए, सपोज पैरा एथलेटिक में आप कभी भी नहीं खेल सकते हैं। यू कैन बी एलिजिबल फॉर एनी अदर स्पोर्ट्स देन एथलेटिक्स। और अभी बताया था एनी के लिए कोई प्रोटेस्ट पैनल नहीं होता है, और एनी कोई रूलिंग नहीं होता है कि भाई आप कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे स्पोर्ट्स कर सकते हो, आप नॉर्मल एबल बॉडी भी कर सकते हो, या दूसरा पैरा स्पोर्ट में आप जा सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। अगर मल्टीपल स्पोर्ट्स क्लासेस किसको दिया जाता है, अगर आपको आपके ज़्यादा इम्पेयरमेंट्स है, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स भी है, मे और मे नॉट हैव इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स, अगर 2-3 जैसे कंबाइंड रहता है, तो आपको 2 या 3 के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन में जाना पड़ता है, अलग अलग पैनल में जाना पड़ता है। और ये तो पहले शायद बोल नहीं पाया, जो फिजिकल असेसमेंट होता है उनका जो क्लासिफायर है, वो द क्लासिफायर कैन बी फ्रॉम ए डॉक्टर और फ्रॉम ए फिजियोथेरेपी साइड। बट अगर आपका विजुअल इम्पेयरमेंट है तो एनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन बिकम द क्लासिफायर, और आपका इंटेलेक्चुअल है तो एनी साइकोलॉजिस्ट कैन बिकम द क्लासिफायर। तो इनका ये अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा और अलग अलग क्लास आपको मिलेगा। उसके बाद इट्स ए चॉइस ऑफ योर्स कि इसको बोलते हैं प्रिफर्ड क्लास। आप क्या प्रिफर करना चाहते हैं, कि आप विजुअल में खेलना चाहते हैं, फिजिकल में खेलना चाहते हैं, दोनों में साथ में नहीं खेल सकते आप। तो यू हैव टू गिव योर प्रिफर्ड क्लास टू NPC, दैट मींस PCI, एंड दैट वुड बी कन्वेड टू वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। अगर आपके पास फिजिकल इम्पेयरमेंट है और आप को 2 क्लास पे एलिजिबल हो सकता है, मगर एक इवेंट में 2 क्लास नहीं हो सकता है। सपोज आप T42 में भी खेल रहे हैं और T44 में भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 अलग इवेंट है, अगर T42 है, ये 44 मिला, तो आप 2 अलग इवेंट में अलग क्लास में खेल सकते हैं, मगर एक इवेंट में आप 2 क्लास में नहीं खेल सकते। अगर आपका विथ टाइम आपका इम्पेयरमेंट चेंज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड चेंजिंग स्पोर्ट्स क्लास। ये एथलीट का खुद का जवाबदेही है कि वो देखे कि कितना इम्पेयरमेंट मेरा बढ़ रहा है, खराब हो रहा है, या अच्छा हो रहा है, या बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है। तो उसको देखते हुए क्योंकि क्लास भी चेंज होगा उसका, और उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। जब वो पूरा कंफर्म हो जाए, ये एथलीट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो उसको मैं IM में जाऊंगा, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, तो एक ऑफेंस होता है। नहीं तो IPC क्या करता है, बोलते खिलाड़ी जानबूझकर छुपाया, तो उसको पेनल्टी डालता है IPC। तो उसके लिए एक खिलाड़ी को देखना है कि नहीं, मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि मेरा इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आई एम नॉट फिट टू दिस क्लास, या मेरा बहुत कम हो रहा है विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ
डिजीज प्रोसेस या फिटनेस मेरा क्लास बढ़ रहा है, आई एम एलिजिबल फॉर हायर क्लास, तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है टू पीसीआई एंड देन टू वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स रिक्वेस्टिंग फॉर रिक्लासिफिकेशन। नेक्स्ट। तो थोड़ा प्रोटेस्ट के बारे में बोलते हैं। प्रोटेस्ट कौन कर सकता है? प्रोटेस्ट कोई नेशनल बॉडी कर सकता है या एनपीसी कर सकता है, जैसे हमारा पीसीआई है, नहीं तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स खुद प्रोटेस्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर क्लासीफायर को एट द वर्ल्ड स्टेज कंपटीशन में लगता है कि ये जो खिलाड़ी दौड़ता है या खेलता है वो प्रॉपर क्लास में नहीं है, तो उस मोटो वो खुद प्रोटेस्ट डाल सकता है। तो प्रोटेस्ट का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो हम काफ़ी बार देखा है कि इंग्लिश में लिखना है और प्रॉपर रूल पोजीशन देख के लिखना है। तो अगर नहीं लिखते हैं तो कैंसिल हो जाता है आपका प्रोटेस्ट, एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन प्रोटेस्ट फॉर्म आता है जिसको प्रॉपरली भरना है। आपका SDMS ID कोर्स क्लास क्या एलोकेट किया गया, कॉज ऑफ आप क्यों चाहते हैं कि इसमें अलग क्लास मिलना चाहिए, और आपका रेफरेंस स्पेसिफिक पैरा एथलेटिक का रूल क्या है, कौन सा रूल के हिसाब से आप सोचते हो कि ये होना चाहिए। और प्रोटेस्ट फी 200 यूरो जो है आपको जमा करके प्रोटेस्ट विद ऑल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोटेस्ट दायर करना पड़ेगा। अगर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट होता है देन इट इज सेंड टू ए प्रोटेस्ट पैनल, और प्रोटेस्ट पैनल का जो इवैल्यूएशन होता है और जो नतीजा निकलता है दैट इज फाइनल फॉर एवरीबॉडी। नेक्स्ट। ये फॉर्म बहुत बड़े बड़े हैं। अब लेफ्ट साइड का जो फॉर्म दिया है वो क्लासिफिकेशन फॉर्म है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में इतना क्लियर नहीं है। इसमें कहने का मतलब है द एथलीट हैज टू साइन बिलो, एंड एथलीट के साथ जो उसका सपोर्ट पर्सनल आए होंगे, कोई बोलते थे कि उसका सब मैनेजर जा सकता है, कोच जा सकता है, ये कोई एक आदमी जा सकता है एज ए सपोर्ट पर्सनल, तो कोई भी हो सकता है, सही साथी खिलाड़ी हो सकता है, पीसीआई या एनपीसी का सदस्य हो सकता है, कोच हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। एक आदमी जा सकता है जो उसको जानता है, वो खिलाड़ी को जानता है, उसका डिसेबिलिटी के बारे में जानता है, या वो रिप्रेजेंट कर सकता है, इंग्लिश में बोल सकता है, उनको ही साथ में जाना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप इंग्लिश इंटरप्रेटर रखना चाहते हैं, देन द सेकंड पर्सन इज अलाउड टू गो इनसाइड द क्लासिफिकेशन रूल। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रोटेस्ट का रखा है, नारायण ठाकुर का, जो एशियन गेम पैरा एशियन गेम जकार्ता में हुआ था, उनको 35 से 37 दे दिया गया था, और हमने प्रोटेस्ट रखा था, और जिसके कारण अगेन वो 35 में आ गए। तो वो राइट कॉर्नर में नीचे मैंने लिखा है कि कैसे रूल पोजीशन आपको दिखाना पड़ता है। 4.1.3.1 इज वायोलेटेड, और एज पर रूल 2.1.1 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ये क्लास मिलना चाहिए, ये डिसेबिलिटी के हिसाब से इसको गिनती करना चाहिए। जैसे आपको रूल पोजीशन लिखेंगे देन दैट बिकम्स मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, और क्लासिफिकेशन पैनल को सही ढंग से उसको री एग्जामिन करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी जैसे मैं बता रहा था IM इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर खिलाड़ी जानबूझकर कोई चीज छुपाता है आपका इम्पेयरमेंट के बारे में, एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट के बारे में, उसका इवन कॉन्डक्ट, अगर व्हाइल डूइंग एनी क्लासिफिकेशन और अदरवाइज इन द इवेंट उसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है, और उसका जो एबिलिटी है, स्किल है, तो स्किल लेवल को भी छुपाता है, प्रॉपर टास्क एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं तो सही आउटपुट में करता नहीं है, 100% देता नहीं है, देन इट बिकम्स एन ऑफेंस, और उसके लिए हियरिंग बैठता है IPC का या थ्रू वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, जिसमें 1 to 4 years तक उसको बैन भी किया जा सकता है, या उसको परमानेंटली NE भी दिया जा सकता है, नॉन एलिजिबल, और डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन पैनल या हेड ऑफ द क्लासिफिकेशन टीम या चीफ क्लासिफायर, जैसे वो महसूस करते हैं ऐसा वो ऑफेंस का डिसीजन होता है। उसके बाद एक टाइप आता है दैट इज कॉल्ड मेडिकल रिव्यू। अभी जैसे मैं बताया था कि आपको अगर लगता है कि जो क्लास मुझे मिला है वो ठीक नहीं है, उस टाइम में जो प्रोटेस्ट किया नहीं किया, बाद में आपको लगता है कि मेरा क्लास सही नहीं है और आई नीड टू बी री इवैल्यूएटेड अगेन, या अभी जैसे बताया कि आपका डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट चेंज हो गया है विथ टाइम, ज़्यादा खराब हुआ है या बेहतर हुआ है, तो उसको आपको रिपोर्ट करने के लिए, रिक्लासिफिकेशन के लिए आपको मेडिकल रिव्यू डालना पड़ेगा। इसमें आपको प्रॉपर फॉर्म फिलअप करके फ्रॉम एनी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, मे बी फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट, आपको वो फॉर्म में क्लियरली लिखा है कि द गवर्नमेंट डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस पूरा मोबाइल नंबर के साथ लिखना है,
और क्या डिसेबिलिटी है, क्या चेंजेस आया है, क्या वो महसूस करता है कि पहले ये था अब ये हुआ है। तो डिस्क्रिप्टिवली उसका कॉलम है पूरा लिख के आपको थ्रू PCI आपको अप्लाई करना पड़ेगा विथ ए फी ऑफ €100। और अगर वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स इसको एक्सेप्ट करता है कि इसको रिव्यू करना जरूरी है तो रिव्यू पैनल में वो भेज देता है। नेक्स्ट, ये कुछ फोटोग्राफ्स है, इसमें दिखाने का एक ही मकसद है कि डिसेबिलिटी बहुत टाइप का होता है और सारे, बड़ा दुख का बात है कि सारे एलिजिबल नहीं होते हैं। दुख का इसलिए कि जब भी हमारे पास आते हैं खिलाड़ी, लाइन करके खड़े होते हैं और लास्ट को बोलते नहीं भाई तुम्हारा जो डिसेबिलिटी है वो सही नहीं है पैरा एथलेटिक्स के लिए, यू आर नॉट एलिजिबल, तो बहुत दुख होता है और बहुत आर्गुमेंटेटिव माहौल पे हो जाता है और बहुत सैड सिचुएशन हो जाता है, कुछ ऐसा रिएक्शन भी होता है। तो ये थोड़ा जेन्यून है प्रॉब्लम, बट हम लोग जो है ये 8 इम्पेयरमेंट के बाहर जा नहीं सकते हैं। उसका स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है और रूल्स है, उसके बाहर हम जा नहीं सकते। जैसे ये फोटोग्राफ दिखाया सबसे ऊपर और लेफ्ट में है, उसका रिस्ट बेंड है, आप देखोगे तो फ्लेक्स्ड है, मे बी 90 डिग्री और सो। इसका ये हाथ उसका मूव नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या है, हम क्लासिफिकेशन थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो वो एलिजिबल इम्पेयरमेंट है, उसको हम क्लास दे सकते हैं। और ये पैरा एथलेटिक्स में ऐसा है कि आप जब 100 to 400 मीटर आप भाग लोगे, यू हैव टू मेक क्राउच स्टार्ट। आपको हाथ नीचे रख के बेंड पोजीशन में आके फिर दौड़ना पड़ेगा, दैट्स द क्राउच स्टार्ट। उसके लिए आपका हाथ नीचे लगना चाहिए ग्राउंड में, नहीं तो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया है IPC ने, तो उसके कारण ये जो लड़का ऊपर दिख रहा है वो 100 to 400 मीटर में नहीं आएगा, क्योंकि रिस्ट का जो रेंज ऑफ मूवमेंट वो 100 to 400 मीटर में मायने काउंट नहीं होता है, कंप्लेन नहीं करता है। तो वो 100 to 400 मीटर में नहीं आएगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस में चाहे 800 हो और आगे हो, जितने भी मैराथन तक भी हो, वो खेल सकता है। तो उसका नीचे लेफ्ट एक लड़की है जहाँ पे उसका रिस्ट का आगे फोकोमिलिया है, डेवलप नहीं हुआ हैंड, और एक साइड फिंगर है। उसमें क्या है कि अगर आपका रिस्ट जॉइंट में कार्पल बोन्स है और तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये लड़की का थोड़ा सा हाथ आगे है, तो उसका कार्पल बोन्स भी है और एक फिंगर का प्रोमिनेंस भी है, तो ये एलिजिबल नहीं है। तो एक हाथ नहीं है, पाम नहीं है, और आप उसको इनएलिजिबल करोगे तो थोड़ा सा दुख, प्रॉब्लम तो आएगा, बट ये हमारा रूल का खिलाफ है, तो हम इसको ये नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कैटेगरीज है जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। इसमें हेल्थ कंडीशन भी है। सपोज हेल्थ कंडीशन आपका कोई सीवियर है, जहाँ पे बहुत ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है लेग में या हाथ में, और उसमें आप इवेंट कोई देते हो जिसमें उसका स्ट्रेस फैक्टर या फैक्टर हो सकता है, लाइफ को थ्रेट है, तो आप उसको CNC देके आप छोड़ सकते हो, क्लासिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड। उनको थोड़ा एडवाइस देके कि भाई अभी जाके मेडिसिन वगैरह खाओ, आपका बोन फॉर्मेशन अच्छा सा हो और आपका डिजीज थोड़ा बेटर हो, और उसके बाद आप आना क्लासिफिकेशन के लिए। तो अभी हम आपको NA भी नहीं देते हैं, हम आपको CNC देते हैं, क्लासिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट, तो अभी हम क्लासिफिकेशन का ऊपर आएंगे, कितने क्लासेस है पैरा एथलेटिक्स में। आपको पता होगा कि पैरा एथलेटिक्स जो है बहुत बड़ा मेजर गेम है, जिसमें तकरीबन 50 क्लासेस है, 50 क्लासेस ऑल टोटल। तो हमारा मिडल पर्सपेक्ट कितना ज़्यादा है और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस इतना है तो आप बहुत ज़्यादा नंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हाई लेवल का कंपटीशन भी होता है। तो 50 क्लासेस कैसे होता है, अभी ट्रैक एंड जंप्स में हम उसको T बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में T देते हैं क्लास ट्रैक इवेंट्स के लिए, और फील्ड इवेंट्स के लिए थ्रोइंग इवेंट है उसका F देते हैं। तो ट्रैक इवेंट्स पर T, उसमें स्टैंडिंग में 16 क्लास है, और व्हील चेयर रेसिंग या स्कीटिंग में आपका 8 क्लास है, ठीक है। तो 16 क्लास में आपको T फॉर ट्रैक इवेंट्स रनिंग एंड जंपिंग, उसमें 11 से 13 है जो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए है, 11 है कंप्लीटली ब्लाइंड के लिए है, 12 है फॉर पार्शियल विजन है, लेस देन 5 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड। आपको एक आई स्कैनिंग रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा फ्रॉम ए डॉक्टर, और वहाँ पे भी डायग्नोसिस होता है,
एंड वी एज ए फिजिकल इवेल्युएटर हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, बट अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारा साथ है, हमको प्रॉपर रिपोर्ट देता है, हमको सपोर्ट करता है इन रिटन फॉर्म, तो हम इसको क्लियर कट है कि भाई ये क्राइटेरिया है, 5 डिग्री से नीचे होना चाहिए विजुअल फील्ड, अगर है तो हम उसको 12 देंगे, अगर 20 डिग्री से नीचे है तो हम इसको 13 देंगे, अगर 20 डिग्री से ऊपर है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। देन कम्स T20, इट इज फॉर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट का रिसेंट आपको असेसमेंट लेके आना पड़ेगा, जिसमें इंटेलेक्चुअल लेवल 70 हो, 75 हो, उस हिसाब से आपको प्रॉपर डायग्नोसिस अगर मिलता है एज ए फिजिकल इवेल्युएटर हम उसको खिला सकते हैं, नहीं तो अगर इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट होंगे इन द पैनल, वो आपको क्लास देंगे। देन कम्स T35 to 38, ये सारी स्टैंडिंग कैटेगरीज है फॉर न्यूरो केसेस लाइक हाइपोटोनिया, एटेक्सिया, एथेटोसिस। ये लोग सारे दौड़ सकते हैं और फेंक सकते हैं, सॉरी दौड़ सकते हैं और जंप कर सकते हैं 35 to 38। देन कम्स T40 and 41, दिस इज फॉर शॉर्ट स्टैच्यूर, जो डार्क होते हैं उनके लिए है। 40 जिसका अभी पहले से नहीं बताया, शायद सबको मालूम होगा, जो क्लास में नंबर्स होते हैं जितना कम होता है उसका ज्यादा, उसमें ज्यादा सिवियरिटी ऑफ इम्पेयरमेंट रहता है। सपोज आपका 35 क्लास है, तो डिसेबिलिटी ज्यादा होता है दैन 36 या 38। तो जितना कम होगा नंबर्स उतना ज्यादा डिसेबिलिटी डिग्री ज्यादा होता है। तो 35 to 38 आपका स्टैंडिंग क्लास है, आप दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हो। और 40-41 जो है शॉर्ट स्ट्रेचर के लिए है, तो कितना हाइट चाहिए शॉर्ट स्ट्रेचर में बताऊंगा बाद में। देन 42 to 44 यूजुअली जो पोलियो एथलीट्स है, इम्पेयर्ड जॉइंट रेंज है, मसल स्ट्रेंथ है, लिंग लेंथ कम है, तो वो सब कैटेगरी इसमें आते हैं 42 to 44। और ये पेयर का इम्पेयरमेंट के लिए 42 to 44 है। अगर हाथ का है, अपर लिंग का है तो 45 to 47 है। और अगर हम चाहेंगे व्हील चेयर रेसिंग, उसमें 8 क्लास होते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ब्यूटीफुल होता है ये इवेंट, बहुत स्पीड में ये भागते हैं व्हील चेयर रेस, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये 31 to 34 तक होता है फॉर न्यूरो कैटेगरी एंड 51 to 54 फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल कैटेगरी। तो जो क्राइटेरिया है वो तो सेम ही है, जैसे पहले बताया न्यूरो का है तो हाइपोटोनिया, एथेटोसिस, एटेक्सिया होना चाहिए। और अगर ऑर्थो का केस है तो आपका वीकनेस ऑफ मसल्स होना चाहिए, रेंज स्टिफनेस होना चाहिए, लिम्ब लेंथ में प्रॉब्लम होना चाहिए, और लिम्ब लॉस, एम्पुटेशन ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप ये कैटेगरी 51 to 54 व्हील चेयर रेसिंग में आ सकते हैं। नेक्स्ट देन कम्स थ्रोइंग कैटेगरीज, उसमें स्टैंडिंग में 15 क्लासेस होते हैं और सिटिंग में 11 क्लासेस होते हैं। 15 क्लासेस सेम वे विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए 11 से 13 थ्रोइंग, और इंटेलेक्चुअल के लिए 20 मिलता है। F20 ये फॉर फील्ड इवेंट्स, थ्रोइंग इवेंट्स। F35 to 38 ये न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए है। F40-41 जो है शॉर्ट स्टैच्यूर डार्क के लिए है। 42 to 44 अगर पैर में, लोअर लिम्ब में इम्पेयरमेंट है तो 42 to 44 मिलता है। और 45 to 46 है अगर अपर लिम्ब में है, हाथ में आपका प्रॉब्लम है, तो आपको 45 to 46 मिलता है इन स्टैंडिंग कैटेगरी, खड़े होकर आपको फेंकना है। अगर सिटिंग थ्रो है, सिटिंग फ्रेम में ये कभी कभी व्हील चेयर में बैठ के फेंकने को मिलता है, उसमें 11 क्लासेस होता है। न्यूरल कंडीशन के लिए 31 to 34 है। और ऑर्थोपेडिकली डिसेबल के लिए 51 to 57 है। वहाँ पे सिटिंग में 51 to 54 था रनिंग इवेंट में, बट थ्रोइंग इवेंट में थोड़ा ज़्यादा कैटेगरीज है तो 51 to 57 है। नेक्स्ट प्लीज। There are some specific rules for running events and specific rules for throwing events. ये थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। ये क्लासिफिकेशन का एरिया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका हाथ में, रिस्ट में अगर कार्पल बोन्स है, लिम्ब डेफिशिएंसी के बारे में बोल रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट, अगर आपका कार्पल बोन्स है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप रेडियस और ऑल्ना का लोअर एंड से एम्पुटेशन हुआ है या लिम्ब लॉस है, हुपोमिलिया है, और आपको कोई कार्पल बोन प्रेजेंट नहीं है तो आप एलिजिबल है। सिमिलरली फुट में, पैर में क्या है, अगर मिड ऑफ द फुट और बीचों बीच आपका एम्पुटेशन हुआ है
और कोई जो है मेटाटार्सल हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल बोलते हैं, नीचे मेटाटार्सल बोलते हैं, जो लंबा बोन होते हैं पैर में, उसका बेस से ही एम्पुटेशन होना चाहिए, ना कि टोज का लेवल में। काफी लोग आते हैं टोज एम्पुटेशन है, थोड़ा ऊपर तक एम्पुटेशन है। मैंने डिफेंस पर्सनल का क्लासिफिकेशन किया था दिल्ली में, जो लोग फ्रॉस्ट बाइट में अपना आइस में वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे आइस बर्न हो जाता है। तो काफी ऐसे लोग थे, मगर ऐसा है डिसेबिलिटी कभी पार्शियल है, मिड फुट तक पहुंचा ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्लास कुछ देने को इच्छा हो रहा है तो भी नहीं दे सकते, बिकॉज आपको मिड फुट तक पहुंचा नहीं एम्पुटेशन, तो मिड फुट होना ही चाहिए, इट्स मस्ट। जैसे ही मैं पहले ही बोला था, रनिंग इवेंट अगर 100 से 400 मीटर तक है, जहाँ पे आपको क्राउड स्टार्ट चाहिए, तो आपके लिए स्पेशल कुछ रूल्स है, खास करके अपर लिम के लिए है। लोअर लिम तो आपका जो उच्च डिसेबिलिटी अच्छा है, आप दौड़ पाओगे, पर नीचे झुक के ग्राउंड छू पाओगे या नहीं छू पाओगे, उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है, जहाँ पे आपका चाहे मसल पावर हो, रेंज ऑफ मोशन का इशू हो, या लिम्ब लॉस का हो, तीनों में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है जो आपको देख के क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अदरवाइज यू आर एलिजिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड मैराथन, पर 100 से 400 मीटर तक हमको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रूल देखना पड़ता है। लेग लेंथ डिफरेंस आपको 7 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और शॉर्ट स्टैच्यूर के लिए उसका स्टैंडिंग हाइट के साथ साथ आर्म लेंथ को भी लिया जाता है, दोनों को मिला के आपको एक फॉर्मूला है जिसमें आप एलिजिबिलिटी आप डिसाइड करते हो। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे ही थ्रोइंग इवेंट के लिए है कुछ क्राइटेरियाज, और वहाँ पे जोर जो है पैर का ऊपर था, यहाँ पे हाथ में है, तो यहाँ पे लिंग लेंथ डिस्क्रिपेंसी या छोटा बड़ा वो इशू नहीं है। यहाँ पे आपका लिंग डेफिशिएंसी अगर एम्पुटेशन है, इम्पेयर्ड मसल पावर है, इम्पेयर्ड रेंज है, तो आप ज़्यादातर जो है आप सूटेबल है थ्रोइंग इवेंट के लिए। और इसमें अगर आपका एक हाथ में एम्पुटेशन है, तो ये रिस्ट लेवल, जैसे बोला था, रिस्ट लेवल में मिनिमम होना चाहिए, और नो कार्पल बोन शुड बी प्रेजेंट। अगर दोनों हाथ में आपका एम्पुटेशन है, तो रिस्ट से थोड़ा नीचे तक हम जा सकते हैं थ्रोइंग इवेंट में। और अगर 4 फिंगर्स, 4 डिजिट अगर आपका एमसीपी जॉइंट लेवल से एम्पुटेशन है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। दोनों हाथ में होना चाहिए, एक हाथ में नहीं। दोनों हाथ में अगर 4 उंगली नहीं है, या 4 उंगली है थंब नहीं है, दोनों में, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं कोई भी थ्रोइंग इवेंट के लिए। और आपको पता है वो 4 उंगली में कोई भी थ्रोइंग इम्प्लांट पकड़ सकते हो, फेंक सकते हो। और एक इशू है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम खिलाड़ी को पूछते हैं चॉइस क्या है। आपका जो कैटेगरी है वो सिटिंग में भी बैठता है और स्टैंडिंग में भी बैठता है, और खिलाड़ी कभी बोलता है नहीं नहीं सर, हम तो पैर में खड़ा ही नहीं हो सकते, फेंक नहीं सकते, तो हमको सिटिंग में दे दो। तो कभी कभी खिलाड़ी अपना प्रेफरेंस देखता है, उसमें तो क्लासिफायर का रोल है कि उसको परस्यू कराए कि नहीं भाई, तुम्हारा जो इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है जो आपको सिटिंग में दिया जाए। बट एथलीट को भी चॉइस दिया जाता है कि भाई इस डिग्री का इम्पेयरमेंट में आप कैसे आप चूज करना चाहोगे इवेंट, आप बता सकते हो, तो विल कंसिडर दैट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज हिप से नीचे तक बहुत वीक है, पोलियो लेग है, और आप सिटिंग थ्रो करना चाहते हैं, आप स्टैंड होके या थोड़ा दौड़ के फेंक नहीं सकते, तो हम जो है थोड़ा बाद में बताऊंगा, तो ये 57 देते हैं कि आप ठीक है, आप जो ये 51 to 56 सूट नहीं करता है, फिट नहीं होता है, तो हम इसको 57 देते हैं, तो आप 57 में बैठ के आप फेंक सकते हैं। तो इस टाइप का चॉइस रहता है, थोड़ा क्लासिफायर के साथ और थोड़ा खिलाड़ी के साथ। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ कैटेगरीज है, हम जल्दी इसको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। पिछली बार भी अमित सर जी बोल रहे थे कि थोड़ा क्लासिफायर बताए। तो ये जो कैटेगरीज है थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में है, और ये असेसमेंट फीचर्स है। जैसे आपका स्पेसिसिटी 2 आरओ लगाया, तो ये डिग्री ऑफ स्पेसिसिटी है आपका। आपको एग्जामिन करके देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री का है, ग्रेड 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो जो भी हो, आपको थोड़ा सुपरफिशियली मैं बता रहा हूँ कि 31 to 34 जो सिटिंग कैटेगरी था, जिसमें आप बैठ के व्हील चेयर रन कर सकते हैं या बैठ के फेंक सकते हैं, ये कैटेगरी है। जिसमें यूजुअली जैसे 31 क्वाड्रिप्लेजिक लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो चारों लिम्ब से थोड़ा पैरालिसिस रहता है, आपको स्पास्टिसिटी रहता है,
हाइपोटोनिसिटी रहता है, जो हाइपोटोनिया बोलते हैं हम। और वो ग्रेड आपको वही असेस करना है कि 31 32 किसको दे, दोनों क्वाड्रिप्लेजिक है, किसका स्पेसिफिक कितना ग्रेड में है, किस लिम्ब में है। अगर अपर लिम्ब है तो इसको थ्रोइंग या रनिंग किसमें वो जा रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर लोअर लिम्ब में है ज़्यादा तो थ्रोइंग या रनिंग किसमें जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये क्लासीफायर का जॉब है। बट ग्रॉसली कैसा एथलीट दिखता है, कैसा फीचर्स होता है। 31 to 32 तो क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं। 33 जो है हेमीप्लेजिक होते हैं, यूजुअली एक साइड पैरालिसिस होता है उनका। और 34 जो है डाइप्लेजिक, कोई भी दो पैर अगर रनिंग इवेंट अगर दोनों पैर का प्रॉब्लम है तो डाइप्लेजिक में हम इसको 34 में ले लेंगे। T34 में अगर डाइप्लेजिक दोनों पैर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, हाथ का है ज़्यादा प्रॉब्लम, तो हम इसको थ्रोइंग इवेंट में ले सकते हैं F34 करके। देन कम्स 35 to 38 जो आपको स्टैंडिंग क्लास है, और ये यूजुअली क्वाड्रिप्लेजिक नहीं होता है। और मगर ये सारे न्यूरो केसेस है, स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, एटेक्सिया वो रहता है। तो 35 में स्पास्टिसिटी ज़्यादा रहता है ग्रेड 3-2 का, और 36 में एथेटोसिस और एटेक्सिया ज़्यादा रहता है। चारों लिम्ब में ये इनकोऑर्डिनेशन, इतना मसल टाइट नहीं, स्पास्टिक नहीं है, मगर ग्रॉस मूवमेंट होता है, हिलता है, इनकोऑर्डिनेशन है, तो 36 में आपको देखने को मिलेगा। और 37 है टिपिकली हेमीप्लेजिक, जिसको वन साइड पैरालिसिस होता है। और आप देखते होंगे जब दौड़ते हैं तो वन साइड झुक के और वन साइड लिंपिंग करके वो दौड़ते हैं, उसको 37 बोलते हैं। और 38 यूजुअली डाइप्लेजिक या मोनोप्लेजिक होते हैं, जहाँ पे मामूली या एक पैर एक हाथ में न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, तो उसको 38 हम देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक केसेस में 40 से लेके 64 तक हम देख सकते हैं क्लासेस। 40 जो है 40-41 ड्राफ्ट के लिए है। 40 कैटेगरी किसको दिया जाता है, जिसका मैक्सिमम हाइट, मेल अगर है मैक्सिमम हाइट 130 सेंटीमीटर होना चाहिए और आर्म लेंथ 59 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो मैक्सिमम हाइट 125 सेंटीमीटर होना चाहिए और आर्म लेंथ जो है 57 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कभी कभी थोड़ा सा मिक्स रहता है, कभी हाथ लंबा रहता है, तो हम इसको ऐड करके एक फॉर्मूला है जिसमें आप डाल के आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो मीट करता है या नहीं करता है। और 41 थोड़ा सा हायर कैटेगरी है और इसमें ज़्यादा हाइट थोड़ा हो तो मैनेजेबल है। अप टू 145 सेंटीमीटर फॉर मेन और 135 सेंटीमीटर फॉर वुमेन। आर्म लेंथ 66 सेंटीमीटर फॉर मेन और 63 सेंटीमीटर फॉर वुमेन। ये अगर है तो आप ये कैटेगरी में आ सकते हैं। तो कभी कभी थोड़ा दिक्कत आता है कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में भी खिलाड़ी को कैटेगरी नहीं मिलता। देन कम्स 42 to 47। 42 to 46 जो है वो थ्रोइंग इवेंट के लिए है और 42 to 47 जो है वो आपका रनिंग इवेंट में है। तो 42 जहाँ पे सिंगल या बोथ एबव नी अगर एम्पुटेशन हो, मसल पावर कम हो या स्टिफनेस हो, अगर नी का एबव प्रॉब्लम है तो 42 मिलेगा, एक या दोनों का। अगर दोनों नी का नीचे है तो 43 मिलेगा बिलो नी। ओके, अगर सिंगल बिलो नी है तो 44 मिलेगा, जिसका एंकल में प्रॉब्लम है, एंकल में कोई डिफॉर्मिटी है, एंकल एंड फुट में कोई प्रॉब्लम है तो 44 मिलेगा। 45, 46, 47 फॉर अपर लिम्ब इम्पेयरमेंट्स। अगर आपका दोनों हाथ में एल्बो का ऊपर प्रॉब्लम है, चाहे लिम्ब लॉस हो, एम्पुटेशन हो, या आपका स्टिफनेस हो, जॉइंट का इशू हो, मसल पावर का इशू हो, तो आपको 45 मिलेगा। अगर एक हाथ में है एबव एल्बो तो 46 मिलेगा। अगर दोनों हाथ में बिलो एल्बो का प्रॉब्लम है तो भी 46 मिलेगा आपको। अगर एक हाथ में बिलो एल्बो का प्रॉब्लम है तो 47 मिलेगा। उसके बाद अभी रिसेंटली सिंस लास्ट 1 ईयर दिस इज इफेक्टिव द क्लास ऑफ 61 to 64। ये आपको ये प्रोसेस द क्लास विथ प्रोसेसिस होता है, जो ब्लेड रनर्स बोलते हैं हम उनको। तो 61 किसको दिया जाता है, जिसका नी का एबव, एक के और एबव नी, एबव नी दोनों पैर में प्रॉब्लम है, एबव नी दोनों पैर में एम्पुटेशन है और एबव नी से वो प्रोस्थेसिस पहन रहा है तो उसको 61 मिलेगा। अगर दोनों पैर में नी का नीचे से एम्पुटेशन है तो 62 मिलेगा और एक पैर में नी का
ऊपर एम्पुटेशन है तो 63 मिलेगा। अगर एक पैर में नी का बिलो है एम्पुटेशन तो 64 मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी ये तो थोड़ा ज़्यादा जिसमें जोर दिया जाता है वो थ्रोइंग इवेंट है। 51 to 57 तक रनिंग इवेंट तो है ही है। 51 to 54 फॉर व्हीलचेयर रनिंग और 51 to 57 फॉर थ्रोज। तो ये थोड़ा सा लिखा है, आप हम बाद में स्लाइड में देख सकते हैं आप। मगर जो 51 कैटेगरी और सीवियर कैटेगरीज होते हैं जहाँ पे एट द लेवल ऑफ C5-6 सर्वाइकल, फिफ्थ या सिक्स सर्वाइकल में अगर फ्रैक्चर डिस्लोकेशन है और स्पाइनल कॉर्ड आपका इंजर्ड है और उसका नीचे से आपको क्वाड्रिप्लेजिया है, चारों लिम्ब पैरालिसिस है, तो आपको P51 कैटेगरी दिया जाता है। उसमें आप सर्वाइकल से नीचे टोटल पैरालिसिस रहता है, ट्रंक बैलेंस नहीं रहता है, और बिकॉज ऑफ C5-6 या उसका ऊपर 4-5 तो आपको थोड़ा सा पावर रहता है हाथ में। तो यूजुअली जो बाइसेप मसल है और रिस्ट एक्सटेंसर में थोड़ा सा पावर रहता है, जिसके कारण आप जो बोलते हैं क्लॉक थ्रो, क्लॉक को थोड़ा फिंगर, दोनों फिंगर के बीच में आप ब्रीथ करके फेंक सकते हो। वुडन इम्प्लांट होता है जो उसको क्लॉक बोलते हैं। तो क्लॉक थ्रो इज ओनली गिवन टू 51 कैटेगरी। 52 से आगे आपको क्लॉक थ्रो नहीं मिलेगा, आपको जैवलिन, डिस्कस, शॉटपुट जो है वो मिलता है। तो 52 थोड़ा सा कम सीवियर होता है कंडीशन, और ये C7 और 8 लेवल में अगर इम्पेयरमेंट है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या कोई भी दूसरा कारण से आपका सर्वाइकल लेवल में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है या डिजीज हुआ है, उसके नीचे से आपका पैरालिसिस है, या आपको सीवियर स्टेट ऑफ पोलियो या दूसरा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल तो नहीं बोलूँगा, वीकनेस, मसल वीक प्रॉब्लम है, या पोलियो है या दूसरा कंडीशन है, तो आपको 52 मिलेगा। ये थोड़ा बेटर होता है 51 से। इसमें शोल्डर और एल्बो और रिस्ट तक आपका पावर रहता है इन वेरिंग डिग्री, मगर फिंगर्स आपका वीक रहता है या फिंगर्स पे मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 52 कैटेगरी होता है। 53 में क्या होता है, पूरा हाथ आपका नॉर्मल रहता है, क्योंकि अभी जो लेवल ऑफ लीजन है वो T1 to 7 तक चला गया है। थोरासिक जो है डॉर्सल वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा, तो 1 से 7 तक यानी मिड थोरासिक, तो मिड लेवल तक अगर आपका इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो आपको 53 मिलता है। उसमें आपका मसल पावर उस लेवल से नीचे कम रहता है, और उसका ऊपर तक आपका अपर बॉडी, ट्रंक और आर्म या हाथ जो है वो नॉर्मल मसल पावर में रहता है। 54 जो होता है ये T8 to S4 फॉर रनिंग इवेंट, और T1 to T7 हम देखते हैं फॉर थ्रोइंग इवेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि T54 तक ही रनिंग इवेंट जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। 4 कैटेगरी है, मगर थ्रोइंग में 7 कैटेगरी है, तो हम T1 to T7 तक हम जा सकते हैं, और उनमें नॉर्मल मसल पावर रहता है अपर लिम्ब में, ट्रंक में, मगर 54 कैटेगरी में देयर इज नो एब्डोमिनल्स, एब्डोमिनल मसल्स और लोअर पीछे जो पैरास्पाइनल मसल है, स्पाइनल मसल है, वो जीरो होता है। ये अगर 100% आपका जीरो है एब्डोमिनल्स, तो आपको 54 कैटेगरी मिलेगा। देन कम्स 55 कैटेगरी, जिसमें आपको एब्डोमिनल्स आ जाएगा, क्योंकि लेवल अभी बढ़ गया है। ये खाली थ्रोइंग कैटेगरी है, T8 to L1। एब्डोमिनल्स आपको नॉर्मल मिलेगा या वीक थोड़ा सा मिलेगा, बट मसल टोन और पावर मिलेगा आपको। मगर हिप फ्लेक्सर्स और उससे नीचे, हिप से नीचे आपको वीकनेस या पैरालिसिस या वीकनेस आपको मिलेगा, और ये 55 कैटेगरीज होते हैं। 56 L2 लंबर 2 से लंबर 4 तक, L2 से L4 तक अगर अफेक्टेड है आपका, ऊपर सारे नॉर्मल है, नीचे पैरालाइज या वीक रहता है, तो आपको 56 मिलेगा। और पहले भी बताया था, जैसे 51 to 56 में अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं होता है बट दे हैव एलिजिबल इम्पेयरमेंट, तो हम इसको 57 देते हैं, चाहे वो L4 से नीचे हो, चक्रा लेवल में हो कोई इम्पेयरमेंट, स्पाइन का इंजरी वगैरह हो चक्रा लेवल में, तो 57 आएगा। नहीं तो दूसरा इम्पेयरमेंट जो है, फिटनेस है, मसल पावर का इशू है, वो भी 57 में आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज।
ये थोड़ा सा लेबल दिया है, जो मेडिकल पर्सनल है वो उनको पता है, नहीं तो हम ऐसे ही जज कर सकते हैं कि किस लेवल में स्पाइनल नर्व किस मसल को सप्लाई करता है। कौन जो मसल को सप्लाई करता है उसको मायोटोम्स बोलते हैं, जो स्किन को सप्लाई करता है जिसमें हमको सेंसेशन पता चलता है उसको डर्माटोम्स बोलते हैं। तो इसी से जब हम एग्जामिन करते हैं तो पता चल जाता है। और मैं आपको बाद में रिहाब के बारे में बताऊंगा। यही सारे हमारा बेस रहता है तो रिहाब ये यानी पैरा एथलीट, सपोज एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एथलीट है और उनको कोई इंजरी है, तो एक फिजियो को क्या देखना जरूरी है, किस लेवल का इंजरी है, पहले तो क्या क्लास मिला है, किस इंजरी लेवल का इंजरी है, क्या क्या मसल अफेक्टेड है, क्या क्या मसल में हाइपोटोनिसिटी है, स्पेसिसिटी है, किस किस मसल बहुत वीक है, कौन सा मसल इंजर्ड है, वो सारे आपको इसी से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा टू डू फर्दर मैनेजमेंट। और जो नॉर्मल एबल बॉडीड फिजियोस होते हैं, देयर अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम ए फिजियो वर्किंग विद पैरा एथलीट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेम चीज है, थोड़ा सा फोटोग्राफिकली था और ये डिस्क्रिप्टिव है कि C5-6 अगर आपका लेवल है, स्पाइनल नर्व है, तो दैट मूव्स द शोल्डर, रेजेस द आर्म, और ये 51 कैटेगरी में अफेक्ट होता है। अगर C5-6 लेवल में इंजरी हो गया तो आप शोल्डर रेज नहीं कर पाओगे, हाथ उठा नहीं पाओगे। तो ये इस टाइप का दिया है, यू कैन गो थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स क्लास। So, can I say something here? Our IPC president now is Andrew Parsons. We saw Philip Craven has retired, and the new president PCI is Andrew Parsons. So that is something which I wanted to bring in 2015, I think a person was there. Yes. Craven. Hello. Yes, yes, sir. Yes, yes. That's so I'm saying we have a new president, PCI, Yeah. IPC president now. He was the one before Andrew. Now Andrew Parsons is the new IPC Yes, sir. president. Yeah. Yes. So I am starting the. So yes, so this is a 17th November 2014 during a sports science conference. Okay, go ahead, sir. Yeah. So I'm starting the rehabilitation aspect of my presentation. ये हमारा जितना साल का एक्सपीरियंस है उस बेसिस में मैंने बनाया है। ये 2014 में जब वो आईपीसी का प्रेसिडेंट थे फिलिप क्रावेन, ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में बताए थे कि रिहाब इज द बेसिस फॉर एनी इम्प्रूवमेंट इन पैरा स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पैरा स्पोर्ट्स। तो ये आईपीसी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जो रिहैबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट है, वो कितना इम्पोर्टेंट फॉर पैरा स्पोर्ट्स, पैरा एथलीट है देन एनी एबल बॉडीड एथलीट। नेक्स्ट प्लीज। मैंने जितना चेक किया नेट में, और आई हैव इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 3-4 इयर्स, तो हमने जितना सर्च किया है मैडम, ये थोड़ा सा अभी डिस्करेजिंग फिगर है कि कोई भी ज़्यादा अच्छा साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारा फील्ड में हुआ नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स साइंस स्टडीज, मेडिकल स्टडीज, इंजरी स्टडीज, रिहैबिलिटेशन स्टडीज। कोई ज़्यादा रिहैबिलिटेशन भी हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, बट स्पोर्ट्स इंजरीज में, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में काफ़ी कम काम हुआ है। तो जनरल स्टडीज कुछ है, जो कुछ स्टडीज बता रहे हैं पैरा एथलीट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस आज वल्नरेबल टू इंजरी एंड इलनेस। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर पैरा है आप, एबल बॉडी से आप डबल रिस्क रखते हैं कि इंजरी होने का। और कुछ रिसर्च पेपर 2019 का है जो बता रहा है कि अभी भी कोई जो गूगल सर्च किया, अभी भी कोई प्रॉपर प्रिवेलेंस स्टडीज कि किस स्पोर्ट्स में किस टाइप का इंजरी होता है, कितना ज़्यादा होता है। नॉर्मल स्पोर्ट्स में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, आपको काफ़ी लिटरेचर मिल जाएगा। बट पैरा स्पोर्ट्स में हमारा काफ़ी कमी है, जिसको हम लोग को उसको भरना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स इसमें जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो इसमें ज़्यादा अच्छा सा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यही चीज़ मैंने बोला है कि स्पोर्ट्स एंड इवेंट स्पेसिफिक साइंटिफिक टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट। अभी नॉर्मल के लिए तो जैसे हम साई गांधीनगर में भी कोई भी खिलाड़ी ज्वाइन करते हैं, पैरा खिलाड़ी, तो उनका सारे बेसिक साइंटिफिक टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट, सब मेडिकल टेस्ट
सब हम करते हैं, इंजरी असेसमेंट वो सारे करते हैं, मगर इसमें रिसर्च काफी कम है। सपोज एक स्पाइनल इंजरी एथलीट है, उसमें क्या बायोकेमिकल इश्यूज है जो रहता है, तो स्पेसिफिकली हम वही टेस्ट करें, ना कि नॉर्मल तौर पर हम लिपिड प्रोफाइल निकालते हैं, क्रिएटिन देखते हैं, थायराइड टेस्ट ये देखते हैं, तो वो एक नॉर्मल होता है। और एक पारा के लिए क्या हमको स्पेशल करना है, उसका ऊपर प्रॉपर स्टडीज हो, डेटा हो, so that it can be better implemented, which is lacking at the international level. Next please. ये सारे इंजरीज जो है मैं अपना एक्सपीरियंस से मैं बनाया इसको, कि स्प्रिंटर का क्या क्या इंजरी हो सकता है, नॉर्मल स्पोर्ट्स में तो है, उसी से मैंने लिया है और सोचा कि पारा में किस किस मसल किस किस टाइप का मूवमेंट्स होता है, क्या क्या इंजरी हो सकता है, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। सम मे नॉट बी राइट बट सम आर ऑथेंटिक। जैसे स्प्रिंटर में हमस्ट्रिंग पुल होता है, जाहिर सी बात है, चाहे पोलियो लेग हो या एम्प्यूटेड लेग हो, अगर आपका बिलोनी एम्पुटेशन है तो हमस्ट्रिंग पुल हो सकता है। टिबियालिस पोस्टीरियर या एक्यूलिस टेंडन आपको पता है, जो काफ मसल का एक्सटेंशन है, एक्यूलिस टेंडिनाइटिस, ये बहुत कॉमन है रनर्स में। प्लांटर फसाइटिस, पैटेलोफिमोरल जॉइंट सिंड्रोम, नी में जो पटेला बोन है उसका पीछे काफी फ्रिक्शंस होता है, काफी घिसता है, जो आप ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आपको देखने को मिलता है इन लॉन्गर रन, तो इसको पीएफजे सिंड्रोम बोलते हैं। थिन स्प्लिंट या सीन पेन या स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत कॉमन है रनर्स का, आप पारा में भी देख सकते हो सेम चीज। और क्योंकि मसल सपोर्ट थोड़ा कम है तो इसमें ज़्यादा होने, सीन पेन होने का ज़्यादा चांस है। और रनर्स नी जो एक घुटना का ऊपर एक साइड में मसल्स आता है, इसको टीएफएल बोलते हैं, तो वो मसल अगर बार बार दौड़ने से वो फ्रिक्शन करता है आपका फशिया का ऊपर, तो आपको रनर्स नी, आपको घुटना या उसका थोड़ा ऊपर राइट साइड में, आउटर साइड में आपको पेन होगा, दैट इज रनर्स नी। ये नॉर्मल और पारा के लिए सेम हो सकता है। व्हील चेयर रेस में आप खुद जानते होंगे, एक इमरजेंसी कंडीशन आता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जिनसे आपका जो ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक चैनल्स है वो इंजरी या लीजन का नीचे काम नहीं करता है, इसलिए सडनली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। थोड़ा कभी खिलाड़ी पैनिक हो जाता है खेल का पहले, तो भी ये आता है। तो ये व्हील चेयर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केसेस में देखा गया है। देन कम्स टू थ्रोयर्स में क्लॉग थ्रो जो है, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम हेड टू टो, बट विद द एक्शन ऑफ क्लॉग थ्रोइंग उनका फिंगर्स का काफी फ्रिक्शंस होता है, लैसरेशन होता है और स्किन प्रॉब्लम होता है। देन वो जो फेंकने का मैकेनिक्स है, उसके कारण डेल्टॉइड मसल जो शोल्डर में है वो इंजरी होता है, बाइसेप मसल सबको पता है वहाँ पे होता है इंजरी, और रिस्ट, ज़्यादातर रिस्ट ही होता है ये सारे थ्रो, तो रिस्ट का स्प्रेन होना, लिगामेंट स्प्रेन होना वो कॉमन है। शॉर्ट पुटर्स जो है वो टेनिस एल्बो हो सकता है उनको, और रिस्ट स्प्रेन हो सकता है। शोल्डर में क्योंकि ओवरहेड मोशंस होते हैं, शोल्डर में 4 मसल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स, वो इम्पीचमेंट पिंच हो जाता है शोल्डर जॉइंट के अंदर बार बार रिपीटेड थ्रो के कारण। और इंडिविजुअली ऑल्सो जैसे सुप्रास्पाइनेटस स्ट्रेन ऐसे इंजरी हो सकता है, ग्रॉसली रोटेटर कफ भी इंजरी हो सकता है थ्रोयर का। थ्रोइंग इंजरी इज वेरी कॉमन। और थ्रोयर का जो ग्लूटियल स्ट्रेन, हिप मसल्स जो है वो हो सकता है, हिप जॉइंट भी अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज कंटिन्यूसली आप एक जगह में बैठ रहे और उसमें सारे लोड जाता है और थ्रोइंग लोड भी जाता है। देन कम्स डिस्कस आप जैसे पकड़ते हो फिंगर्स में, उसके कारण रिपीटेड फ्रिक्शन के कारण ब्लिस्टरिंग हो सकता है, लैसरेशन हो सकता है फिंगर्स, और आपका नी, एंकल, शोल्डर, बैक इंजरी हो सकता है बिकॉज ऑफ द थ्रोइंग एक्शन। एंड नी एंड रिस्ट टेनोसाइनोवाइटिस, क्योंकि रिस्ट का ज़्यादा यूज होता है, रिस्ट का जो ऊपर जो टेंडन्स जाता है मसल का एक्सटेंशन, उसका कवरिंग एक फ्रिक्शन कम करने के लिए एक साइनोवियम होता है, जो थोड़ा फ्लूइड रहता है अंदर, आपको फ्रिक्शन कम करता है। और जैसे जैसे एजिंग एथलीट एज होने लगता है, रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है, तो वो फ्लूइड कम होने लगता है और जो कवरिंग है वो ज़्यादा टाइट और हार्ड हो जाता है, तो दैट प्रोड्यूसेस
साइनोवाइटिस। तो ये रिस्ट पेन होता है, बहुत कॉमन है थ्रोयर का, इंक्लूडिंग डिस्कस थ्रोयर। जावलिन का आपको पता होगा, जो जावलिन थ्रो करते हैं, शोल्डर इज वेरी 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 मच अफेक्टेड और उनका शोल्डर इम्पीचमेंट सिंड्रोम रहता है। जैसे देवेंद्र जी इधर है हमारा साई गांधीनगर में, उनका बहुत क्रॉनिक शोल्डर पेन है और ये होगा जब आप रिपीटेड थ्रो करोगे, इतने सालों से करोगे, तो ये इम्पीचमेंट सिंड्रोम होता है। और इसका साथ साथ ये थोड़ा ज़्यादा खराब करने लगता है शोल्डर को आहिस्ता आहिस्ता, दैट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। शोल्डर थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलता है जब आप थ्रो करते हो, यू कैन फील इट कि भाई थ्रो करने के टाइम थोड़ा सा मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिला था, हिलने लगा है मेरा शोल्डर, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। ये यूजुअली होता है थ्रोयर्स का। और एल्बो में आपका जैसे गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो का ऑपोजिट साइड में, आउटर साइड में टेनिस एल्बो होता है, इनर साइड ऑफ द एल्बो में गोल्फर्स एल्बो होता है, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो थ्रोइंग एक्शन ही ऐसा है, आप ऐसे पकड़ते हो जावलिन को और फेंकते हो, तो मीडियल साइड, इनर साइड ऑफ द एल्बो में इंजरी होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकते हैं आपका ऑलिकानन प्रोसेस, जो ऑलना है और उसका ऊपर तक जो ऑलिकानन प्रोसेस है, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर भी देखा गया है कि कुछ खिलाड़ी में जावलिन थ्रोअर का आता है, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। ये सारी इंजरी हो सकता है। मैं ट्रैक एंड फील्ड का बता रहा हूँ, मगर हमारा साई गांधीनगर में और 4 गेम है पारा में, जैसे स्विमिंग है, बैडमिंटन है, पावर लिफ्टिंग है, उनमें भी काफ़ी सारे इंजरीज होते हैं जो मैंने खुद देखा और थोड़ा स्टडी किया, इसको लिखा है, बट विल नॉट एक्सप्लेन दिस इन दिस सेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी फिजियो का रोल ज़्यादातर तो सारे जो पारा स्पोर्ट्स में है उनको पता है, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग फ्यू ऑफ देम। आपको अभी भी एक्यूट कोई इंटरवेंशन का जरूरत है, इमरजेंसी मेडिकल केयर का जरूरत है, सडन इंजरी हो गया, एक्यूट इंजरी हो गया, हेड एंड चेस्ट इंजरी हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, मेडिकल इमरजेंसी है, आपका हार्ट बंद हो गया या कोई हेड इंजरी से अनकॉन्शियस हो गया, दे आर द फिजियो हैज ए रोल इवन अप टू द लेवल ऑफ गिविंग CPR in emergency cases. Then you have the greater role on injury prevention. अभी जैसे पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हमारा पारा एथलीट का तो जैसे मैडम आप पहले ही बता रहे थे कि उनका मसल टाइप अलग होता है, मसल स्ट्रेंथ अलग होता है, मसल वर्टिकल इनर स्ट्रक्चर ऑफ मसल सब्सटेंस अलग होता है। जैसे ही जॉइंट एंड अदर स्ट्रक्चर्स, बोन सारे वीक या अबनॉर्मलिटीज होता है, तो उसको प्रिवेंट करके रखना ये बड़ा काम होता है। और ये फिजियो को थोड़ा एक्वेंटेड होना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा इन पारा स्पोर्ट्स कि व्हाट इज द डिसेबिलिटी ऑफ द एथलीट और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, और उस पर क्या हम फिजियो इंटरवेंशन कर सकते हैं या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। सपोज एक स्पास्टिक मसल है, उसका इंजरी होने का अलग चांस है, अगर वो एक वीक मसल है उसका इंजरी होने का एक अलग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अलग होता है। तो हम कैसे इसको बचा के रखेंगे, प्रिवेंट करके रखेंगे, ये फिजियो को नॉलेज रखना पड़ेगा। देन कम्स फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज। सबको पता है इंजरी हो गया तो फिजियो इज द मस्ट, फिजिकल मोडालिटीज, फिजिकल मेथड्स इज मस्ट, बिकॉज you cannot take much of medicines for longer duration. In acute condition it's okay to have some painkillers, but physiotherapy has to be continued until you get complete recovery. Then comes rehabilitation. Rehabilitation is an aspect of physiotherapy जिसमें हम खिलाड़ी का जो भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है उसको स्ट्रेंथन अप करके, उसको इम्प्रूव करके, जो नॉर्मल या एथलीट स्पेसिफिक आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको फिटनेस चाहिए, उस लेवल पर लाने के लिए हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं इसको। और ये बड़ा जैसे अभी इंजरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन था, इससे रिहेबिलिटेशन है, ये दोनों यूजुअली पारा स्पोर्ट्स खिलाड़ी के साथ चलता रहता है, और कभी कभी इंजरी होता है तो मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो रिहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन दिस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द एथलीट इज प्लेइंग। देन एक मेजर एस्पेक्ट है फिजियो के लिए अडैप्टिव इक्विपमेंट क्या यूज करता है खिलाड़ी, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक क्या यूज करता है। मैं कभी भी बोला था एज ए क्लासिफायर हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक कहाँ यूज करना है, इवेंट में अलाउड है नहीं है, असेसमेंट के टाइम तो अलाउ हम नहीं करते हैं, उसको खोल के हम देखते हैं, निकाल के देखते हैं। और प्रोस्थेसिस का हाइट कितना होना चाहिए, सपोज आपका बिलो नी या एबव नी दोनों लेग एम्प्यूटेड है, दोनों पैर है ही नहीं, तो आप कितना हाइट का प्रोस्थेसिस पहनोगे
दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द क्लासिफायर। और उसका फॉर्मूलाज है कि आपका स्टैंडिंग हाइट, आपका आर्म लेंथ, कभी कभी तो चारों लिम्स नहीं रहता है या तीनों लिम्स नहीं रहता है, तो उस हिसाब से क्या क्या अवेलेबल है आपके पास सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट, उसका मेजरमेंट्स लेके और उसमें डिसाइड किया जाता है कि हाइट ऑफ द प्रोस्थेसिस क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ फुट ऑफ प्रोस्थेसिस क्या होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए। ये सारे क्लासिफायर का रोल है। और फिजियो को भी ये सब ध्यान रखना है, उसको ट्रेनिंग भी कराना है, और प्रोस्थेसिस के निकलने के बाद काफ़ी सारे इंजरीज होते हैं वो भी ध्यान रखना है। देन कम्स ट्रेनिंग एंड रिकवरी ऑफ आवर एथलीट्स। ये फिजियो का काम है, दे शुड बी विद द एथलीट इन द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, और किस टाइप का ट्रेनिंग करते हैं, किस फेज में कंडीशनिंग चलता है, और क्या ख्याल रखना पड़ेगा, और किस किस एरियाज में हमको डेवलप करना है, किस एरियाज में हमको कोई स्ट्रेस नहीं देना है, कोई स्ट्रेस नहीं पहुंचाना है। ये सारी चीज फिजियो हैज टू लुक आफ्टर एंड एडवाइस एंड डू द वर्कआउट्स jointly with other professionals. Then comes performance enhancement. It's a teamwork, but physio has a greater role to play with respect to increase of performance. Next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिहेबिलिटेशन का हमारा जो, जैसे अपनी इंजरी हुआ तो उसके बाद इमीडिएट हम प्राइमरी केयर बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, और पेन, स्वेलिंग सारे कम होने के बाद हम एक रिहेबिलिटेशन गोल तैयार करते हैं कि भाई अभी एक्यूट फेज तो खत्म हो गया, पेन स्वेलिंग तो कम हो गया, बट अभी इसका जो प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ था, एंड्योरेंस था, जॉइंट रेंज था, कार्डियोपल्मोनरी या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस था, उसका एबिलिटी था, वो कैसे वापस आए। तो उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन गोल तैयार करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल पूरा असेसमेंट करके तैयार करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर हम काम करते हैं इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस। जैसे हमको कुछ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में हम प्रीवियस लेवल ऑफ फिटनेस या प्रॉपर लेवल ऑफ फिटनेस वापस ले आए, उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी रिहैब टेक्निक्स सबको पता होगा, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉन टू फिजियोथेरेपी, टू फिजियोथेरेपिस्ट। उसमें थेराप्यूटिक एक्सरसाइज टेक्निक्स, फिजिकल एजेंट्स, इक्विपमेंट्स काफ़ी रहता है फिजियो मैनेजमेंट में, और मेनली सारे जो एम है इन द मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज या प्रॉब्लम्स इन पैरा एथलीट्स, बेसिकली विद द एम ऑफ रिडक्शन ऑफ पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, assisting healing process to increase flexibility, strength or endurance, to increase cardiorespiratory endurance, to improve sensation, coordination, balance, proprioception, to improve physical conditioning and independence। जैसे आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कैसे फिजिकल फंक्शनिंग यूज किया जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल से नीचे तक पैरालिसिस से अपर बॉडी से कितना कुछ आप कर सकते हैं, जिसमें आपका फिजिकल फंक्शनिंग, कार्डियक आउटपुट, आपका रेस्पिरेटरी आउटपुट, वो सारे टाइटल वॉल्यूम वगैरह मेंटेन रहे या बढ़े। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, सम ऑफ द इक्विपमेंट्स आर, हम जैसे फिजियो, जैसे आप पारा के साथ काम करते आ रहे, तो कुछ मशीन को हम एक्सरसाइज इक्विपमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर पारा स्पोर्ट्स, क्योंकि सपोज एक व्हील चेयर पेशेंट है या एथलीट है, इंजर्ड एथलीट है, वो कैसे अपना कार्डियो पावर बढ़ा सकता है, उसके लिए चाहिए अपर बॉडी एर्गोमीटर साइकिल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का हमको थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा डेवलपमेंट फॉर पारा स्पोर्ट्स इसमें देखना पड़ता है। देन कम्स एम्बुलेशन, मोबिलिटी, फंक्शनैलिटी, ये सारे आपको फिजियो के द्वारा या रिहेबिलिटेशन मेथड के माध्यम से आपको लाना पड़ेगा। देन कम्स द लास्ट, टू इम्प्रूव योर गेट, आपका वॉकिंग, आपका एक्टिविटी, आपका रनिंग, जॉगिंग, जो वार्म अप करते हो, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करते हो, जो एक्टिविटी करते हो, तो उसको सारे बढ़ाना और टू द हाईएस्ट लेवल हमको लेके इम्प्रूवमेंट करके लेके जाना, ये सारे फिजियो और रिहैब का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, ये थोड़ा मैं अपना नॉलेज से कैटेगराइज किया है। मेरा ये एम था कि फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी वी वांटेड टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, कि जो कैटेगरीज होते हैं, क्लासेस होते हैं, और उस बेसिस में हम कैसे इसको रिहैब कर सकते हैं, कैसे सोचा जा सकता है। एक 33 वाला एथलीट आया, मुझे क्या करना है, एक 64 वाला एम्प्यूटी आया, मुझे क्या करना है, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले आए 54 कैटेगरी, तो मुझे क्या करना है, 54 में क्या करना है, 53 में क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज मैंने कैटेगराइज किया है विथ माई नॉलेज विथ रेस्पेक्ट टू द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी।
हमको क्या ध्यान रखना है। और ये एक बेसिस है मेरे तरफ से कि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे और डिफरेंट कैटेगरीज को आप जानते जाओगे और उस हिसाब से आपका रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटेजी, फिजियो स्ट्रेटेजीज वो सारे चेंज होते जाएगा। अभी आप एक नजरिया लेके रहोगे तो वो इंजरी हो गया, आपका एल्बो इंजरी हो गया, और आप ये एक न्यूरो का केस है, एक ऑर्थोपेडिक का केस है और एक स्पाइनल इंजरी वाला केस है। तो तीनों का एल्बो इंजरी का तीनों टाइप का सेम टाइप का मैनेजमेंट हो नहीं सकता। तो तीनों का ओरिजिनल कंडीशन क्या है तो आपको ये क्लास से ही पता चल जाता है। भाई 34 क्लास है उसका, ठीक है, ये न्यूरल केस है और इसका क्या है स्पेसिसिटी, एटैक्सिया, एफिलिसिस क्या है उसका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। तो अभी हमको स्पेसिसिटी में क्या एक्सरसाइज देना है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन नथिंग बट गिविंग एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द थिंग्स। अभी आप हमको इंजरी के बाद जो कम हो गया उसके इम्प्रूवमेंट के एक्सरसाइज देंगे, प्लास्टिक मसल में क्या एक्सरसाइज देंगे और फ्लैसिड या वीक मसल में क्या देंगे, एक स्टिफ जॉइंट में क्या देंगे, तो ये सारे एक एम्पुटेड पार्ट में क्या एक्सरसाइज दे सकते हैं, ये सारे हमको क्लासिफिकेशन से प्रिंसिपल मिल जाता है जिस पे हम काम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट प्लीज। ये कंडीशन वाइज मैंने समराइज किया, जैसे ऊपर लिखा था कि 31 to 38 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो किस किस कंडीशन से होता है। ये कंडीशन भी मैंने पहले थोड़ा सा बोला था कि एलिजिबल कंडीशन भी बहुत जरूरी है कि आपको एलिजिबल इम्पेयरमेंट मिलने ढूंढने के लिए, तो एलिजिबल कंडीशन होना जरूरी है। जैसे सीपी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पाइना बाइफिदा है, स्ट्रोक है, हेमिप्लेजिया है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। एक रूल था जो न्यूरोलॉजिकल क्राइटेरिया के लिए, इसमें यह था कि जो इम्पेयरमेंट है दैट शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सीएनएस प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना चाहिए। तो भी मैंने भी एथलीट देखा है जो एक पॉर्थस डिजीज वाला हिप वाला इंजरी वाला, हिप में जो हेड एंड नेक होता है, हिप फीमर बोन का, तो वो बचपन में डेवलप नहीं हो पाता है और कंडेंस रहता है और इसके कारण बहुत पेन होता है। और वो खिलाड़ी मेरे पास आया कि सर ये जो है मेरा हिप से नीचे तक पैरालिसिस है, मेरा पैर चलता ही नहीं। एंड आई अटेम्प्टेड डूइंग फ्लेक्शन ऑफ नी और हिप का, और इतना स्टिफ था कि मैंने सोचा कि नहीं ये तो क्या स्पास्टिसिटी का रिजिडिटी भी हो गया। मगर जैसे मैंने हेल्थ कंडीशन पता किया, देखा कि इसका पॉर्थस डिजीज है, तो ये ऑर्थोपेडिक कंडीशन है जो टेम्परेरी है, अगर आप सर्जरी करोगे तो आपको पॉर्थस डिजीज है वो ठीक हो सकता है। तो मैंने इसको एनी दिया क्लास बाद में। तो एक एलिजिबल हेल्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैटेगरीज में मैंने बताया था कि क्या इम्पेयरमेंट होता है और क्लास के हिसाब से आपको सिम्टम्स क्या आता है, उस बेसिस में आपको रिहाब प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं। और पहले भी बताया था आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरी क्या होता है, एक थ्रोअर का क्या इंजरी होता है, एक रनर्स का क्या इंजरी होता है, और ऐसे डिफरेंट गेम के लिए रैकेट स्पोर्ट्स में क्या इंजरी होता है। तो वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरी को ठीक करना है और ध्यान रखना है कि इसका सिम्टम्स, इसका कंडीशन ये क्लास में, ये कैटेगरीज में क्या है, तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। देन ओनली यू कैन मैनेज बेटर इन ए बेटर वे। नेक्स्ट प्लीज। तो दूसरा कैटेगरी है 42 to 47 और 61 to 64, ये ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। तो इसमें ये सारे कंडीशन जो जिस कंडीशन में ये कैटेगरीज आता है इसको मैंने लिखा है, इंक्लूडिंग बर्न इंजरी, बर्न कॉन्ट्रैक्चर होता है। तो ये सारे कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या सिम्टम्स एंड साइंस होता है, नीचे लिखा है। मसल वीकनेस होता है, एट्रोफी होता है, टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर, ये सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप रिहाब कर रहे हो किसी की 42 से लेकर 64 एथलीट का। नेक्स्ट पेज। देन कम्स 51 to 54 और throwing with 51 to 57. These are not necessarily of spinal cord injury problems. spinal cord injury का एक मेजर पोर्शन होता है इस टाइप का कैटेगरीज में, बट देयर कैन बी अदर कंडीशंस। बट मोरेवर हम इसको व्हील चेयर कैटेगरी बोल सकते हैं। और इसमें क्या क्या इशूज रहता है, क्या कंडीशन रहता है, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सारे रहते हैं, पैरालिसिस कंडीशन रहता है। उसके कारण आपको सिम्टम्स क्या होता है, किस लेवल का इंजरी है, वेदर सेंसेशन द स्किन लेवल अफेक्टेड है, जॉइंट लेवल का एनेस्थेसिया अफेक्टेड है, मसल सेंसेशन अफेक्टेड है, आपका मसल पावर अफेक्टेड है, आप में प्रेशर सोर है नहीं है सेंसरी लॉस के कारण, ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इश्यूज है,
स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में आपको कोई एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हुआ है, कोई न्यूरोपैथी, क्योंकि क्लासिक मसल में आप बैठे रहोगे या दबा हुआ रहेगा तो नर्व दब जाता है, तो नर्व इंटरमेट बोलते हैं इसको, तो न्यूरोपैथी हो जाता है ग्रेजुअली। तो क्या हुआ है कंडीशन आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डिवाइज ए रिहैब प्लान। Apart from the condition, you have to manage the sports injuries, related problems, health disease condition क्या है, ये सारी चीज आपको रिहाब प्रोग्राम में आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो यही मेरा एरिया ऑफ आज का टॉक था कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। हम पारा स्पोर्ट्स के एक नजरिए से अभी तक देखते आ रहे थे कि जैसे क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, नहीं भाई क्लासिफिकेशन क्लास मिल जाए, हम लोग कैटेगराइज करते वही बड़ी बात है, नहीं, क्लासिफिकेशन का या कैटेगराइजेशन का और भी ज्यादा मेजर रोल्स है, और वन ऑफ द रोल इज रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। और अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है तो आपका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी अच्छा हो सकता है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है तो आपका सिलेक्शन ऑफ एथलीट, डूइंग सारे सिलेक्शन जो टेस्ट किया जाता है वो भी प्रॉपरली हम ले सकते हैं, और साइंटिफिक बैकअप प्रॉपरली दे सकते हैं, मेडिकल बैकअप प्रॉपरली दे सकते हैं। साइंटिफिक टेस्ट बहुत है। अभी VO2 मैक्स आप मेजर करोगे पारा एथलीट का, एक व्हीलचेयर एथलीट, एक नॉर्मल स्टैंडिंग एथलीट है, किससे VO2 मैक्स ट्रेडिशनल मेथड में तो चाहे इन द लैबोरेटरी हो या फील्ड मेथड है, जो पारा एथलीट हमारा सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मेरा एक पहला काम शुरू किया है रिहाब का ऊपर। अभी नेक्स्ट बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या क्या स्पेसिफिक टेस्ट हम कर सकते हैं to find out the minimum biological and scientific parameters of a para athlete, इसको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू, the slides are over. Thank you very much. This was my presentation from my part. Any question we can take up. So we have one question coming from Asha ji. She's asking, incomplete spinal cord injury will be allowed to participate as eventually they improve with rehabilitation? Madam, there is two conditions of spinal cord injury. One is complete injury, complete spinal cord injury. Another is incomplete spinal cord injury. तो complete injuries में problems अलग होते हैं, ज़्यादातर weakness और facility रहता है। Incomplete में आपको spasticity वगैरह रहता है, tone रहता है कुछ muscles में। Definitely everybody has to go through physiotherapy and rehabilitation. उसमें जितना भी changes आना चाहिए, कोई इशू नहीं है, बट जब तक उसका ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर सेहत अच्छा हो रहा है और कोई पैरालिसिस बोलो या सेमी पैरालिसिस कंडीशन से नॉर्मल होता है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे ही और सी बिकम नॉर्मल, अगर वो डिसेबिलिटी में रहता है, वीकनेस रहता है, तो कोई कैटेगरी इसको जरूर मिलेगा, एंड ही और सी शुड पार्टिसिपेट इन दैट कैटेगरी। सो विकास पैरा को लेंगे एक बार ऑन स्क्रीन। सैंडी, विकास पैरा करके उनका अभी चैट में रिसेंटली ही उनका वो आया है क्वेश्चन। उनका कैमरा ऑन है? We can speak, ma'am. विकास, आप अपना क्वेश्चन पूछें। आप कुछ पूछ रहे थे फाजा 2018 में जो आपका क्लासिफिकेशन हुआ है। First of all, a very good afternoon to all of you. Thank you, Vikas. Ma'am, in 2018, I have been classified by Sethi sir. तो मुझे जो इन्होंने क्लास दी थी, that was of F42 because I am in a javelin throw. जी। तो I was just asking कि will that category will be applicable into upcoming nationals or state championships? आप आंसर देना चाहेंगे शेट्टी सर? हाँ मैडम, इसमें मैं दो एस्पेक्ट में आंसर देना चाहूँगा। एक तो है कि जो नेशनल क्लासिफिकेशन विकास जी में कंफर्म दिया था ना? कंफर्म था सर, कंफर्म। You have given me on written. या यूजुअली 42 सॉरी कंफर्म होते हैं, कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं रहता इसमें। तो आप एलिजिबल डेफिनेटली एक बार क्लासिफिकेशन हुआ एंड यू आर इन कंफर्म कैटेगरी, यू कैन प्ले इन इंडिया, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द इवेंट्स। अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा।
No, क्योंकि हमारा वहाँ मान्य नहीं होता। yeah, I do understand. At international level, we need to provide some medical certifications and other things. तो वहाँ का procedure I'm very well aware. I'm just asking कि Indian जो competitions हमारे होते हैं like state championships स्टेट होती और हैं, नेशनल। हाँ nationals होते हैं, तो मुझे फिर से classification कराना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं नहीं और नहीं नहीं, आप जो ऑर्गेनाइजर है उनको जब आप सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन, तो आप वो कैटेगराइज लिख दीजिए एंड कंफर्म लिख दीजिए, तो कोई इशू नहीं। thank you very हाँ much, जी, sir. I got my हाँ, answer. Thank you. So we have a female para athlete. We have Karamjyoti also asking. So can we get Karamjyoti Paralympian? Her name Yes. is clear on. She can speak. She can speak, ma'am. Okay, Karamjyoti, you can take your question. आप अपना question पूछिए. Yes. I'm asking about the flaccid and spastic paralysis difference, sir. Okay. Shetty sir, the question is, what is the difference between flaccid and spastic paralysis? मैं personally spastic paralysis में certify होती हूँ, जो मेरी 53 category में type of जो मेरा paralysis है. But it will be really, it's a very good question. Can we have an answer on this, Shetty sir? या फ्लैसिडिटी बेसिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलो या पेरिफेरल नर्व इंजरी बोलो, जिसमें आपका कंप्लीट इनर्वेशन चला जाता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक जो नर्व्स होता है, कहीं पे अगर स्पाइनल कॉर्ड लेवल में या नीचे लेवल में कट हो जाता है या इंपेयर हो जाता है, तो आपका इनर्वेशन मसल्स का ऊपर नहीं रहता है, देन मसल्स हैज नो टोन लेफ्ट, मसल में टोन नहीं रहता है, इसको फ्लैसिडिटी बोलते हैं। वो ढीला लगता है, लूज रहता है, सीवियरली वीकनेस बोलते हैं, इसको फ्लैसिडिटी बोलते हैं। जब आप में कुछ अपर मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मसल तक आता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व, अगर कुछ बचा हुआ रहता है, जैसे दीपा मैडम ने बोले कि उनका शायद पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो उसमें नहीं कुछ सर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट है, चेस्ट बिलो सेंसेशन नहीं है, लेकिन स्पाजम्स बहुत आते हैं। तो इज स्पाजम पार्ट ऑफ स्पास्टिसिटी और दैट इज इनवॉलंटरी स्पाजम? क्योंकि मेरी बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, तो मुझे कहा जाता है कि आप बहुत स्पास्टिक हो जाते हो, फिर मेरे को 2 या 3 बार जरूर अपनी बॉडी ढीली करनी पड़ती है, बट उससे मुझे कोई असिस्टेंस कम मिलती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होती है। इन यूजुअल कंडीशन मैडम, जैसे आप बैठे कुछ काम नहीं कर रहे, बैठे तो मसल्स आपका टाइट रहता है, स्पास्टिक या थोड़ा टोन ज्यादा रहता है, ना नॉर्मल रहता है या ढीला रहता है, फ्लैसिड जैसा रहता है? On movement it suddenly gets into a spasm, सब कुछ टाइट हो जाता है, अकड़ जाता है। सडन मूवमेंट में करो, बॉडी में आप शिफ्टिंग कर रहे हो या आप थ्रो कर रहे हो, तो एकदम अंदर से टाइटनेस आ जाती है, लंग्स तक भी आ जाती है। मैडम दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाजम, वो स्पास्टिसिटी नहीं है, तो आपका कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और इसमें स्पास्टिसिटी नहीं है। आप कोई कभी भी इसको इंटेंशनल आप बोल सकते, तो इंटेंशनली आप कुछ एक्शन करना चाहो तो आपको स्पाजम जो है बढ़ जाता है। चाहे आप सिंपल केस में आप कुछ बड़ा इंजरी भी देख लो, फ्रैक्चर भी देख लो, अगर थोड़ा सा इंजरी है और आप वो हाथ को हिलाना चाहते हो तो मसल स्पाजम हो जाते हैं, दैट इज इंटेंशनल इनवॉलंटरी स्पाजम। तो इस टाइप का आपका हो सकता है, हुआ है। और कमिंग टू स्पास्टिसिटी, अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड एंड एबव चैनल कुछ भी बचा है, कोई नर्व है जो सप्लाई करता है मसल को, देन दैट प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिसिटी या स्पास्टिसिटी। अगर कुछ बचा नहीं चैनल तो फ्लैसिडिटी हो जाता है। अगर ऊपर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ चैनल बचा है, इनकम्प्लीट इंजरी है, तो आपको स्पास्टिसिटी बना रहता है। समटाइम्स स्पास्टिसिटी इज गुड आल्सो फॉर मूवमेंट्स या फॉर पोस्चर। So, Karamjyoti, have you got your answer? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Karamjyoti. And Karamjyoti is again a very, very famous and very, very efficient women para-athletes, very leading para-athletes in India. And we very welcome you on board. And any other questions for now? There is a question from Dr. Rakesh Gupta. It says, due to change of classification, no option available to participate, then participation will be assumed. Gupta sir, Rakesh Gupta sir, one last question of the evening.
गुप्ता सर Hello. वेलकम। Yeah. Thank you. आप खुद पूछे सर, तो और हाँ, तो हिंदी में मैंने भी एक्चुअल में जी मैंने फिर 2 पूछेंगे तो पोस्ट, बाकी बच्चों के लिए भी थोड़ा हाँ बिल्कुल, मैंने 2 पोस्ट डाली थी। उससे पहला भी एक क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन तो वो वाला था मेरा, जी बोले। जिसमें कहा था कि कई बार क्या होता है कि क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे चेंज हो जाती है। जो हमारा नेशनल क्लासिफिकेशन है वो हमने दिया, लेकिन जी उसी कैटेगरी में हमने उसका एंट्री भेज दिया। बट एज सुन एज द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कंडक्ट्स, द क्लासिफिकेशन चेंजेस कैटेगरी। जी अब उस केस में क्या होता है कि उसका इवेंट ही नहीं है, जो इवेंट का वो बच्चा है उसका चेंज कैटेगरी में उसका इवेंट ही नहीं है, तो उस केस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो क्या उसका पार्टिसिपेशन कंप्लीट माना जाएगा, या उसके साथ क्या मतलब और उसमें मतलब क्योंकि नेशनल क्लासिफिकेशन और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बाद यू प्रोबेबली कैन बी एट अ लॉस, बिकॉज मेरा अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस देखूं 2009 में बैंगलोर में आईवास वर्ल्ड गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और शुरू में मुझे नेशनल क्लासिफिकेशन में 54 में डाल दिया था। 54 के जैवलिन थ्रो के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे उसमें नॉन एलिजिबल डाल दिया गया था, मेरा रिजल्ट ही नहीं अनाउंस हुआ, बिकॉज वो F53 का गेम था और मैं F54 में खेल रही थी। और आप लोअर होके अपर में खेल सकते हो, लेकिन अपर होके लोअर क्लास में नहीं खेल सकते हो। और वहां पे उन्होंने मुझे फिर 53 कैटेगराइज किया आईवास में, और मेरा रिजल्ट नहीं आया। सो एक्चुअली मेरा जैवलिन नलिफाई हो गया, और फिर नेक्स्ट गेम शॉटपुट में मुझे डाला गया था। बट वो आई वॉज लकी कि 53 का शॉटपुट अभी नहीं हुआ था। अगर वो हो चुका होता तो फिर शायद मेरे पास एक्चुअली कोई इवेंट नहीं बचता। तो ये होता है। और ऐसे ही मंजुला करके हमारे साथ एक एशियन गेम्स में गई थी 2010 में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको 52 कैटेगरी दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट को वीडियो स्क्रीनिंग से स्टडी किया गया था। and this was a post protest that got neglected in Commonwealth Games, but when she went to Asian Games, और वो 52 कैटेगरी में पैरा एशियन गेम्स गंगजाओ चाइना में गई, लेकिन वहां पे उनका एंट्री नहीं थी। वहां पे 54 में उनका क्लासिफिकेशन हुआ नहीं था, और शायद 54 में वो इवेंट नहीं था, और 52 में सो स्टार्ट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया। सो दैट्स something which I have experienced. Baki, of course, there are number of cases and experiences, है ना? तो उसमें प्रॉब्लम यही आता है कि अब वो बच्चे का क्या फॉल्ट हो जाता है। वो कहता है मैं तो उस कैटेगरी के लिए तैयार हूँ और उसी कैटेगरी में मेरा क्लासिफिकेशन हुआ है, बट जब इंटरनेशनल में जाता है तो वहां उसको डिफरेंट सीन मिलता है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि मेरा क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं होके आ रहा हूँ, बट क्या वो ठीक नहीं था जो मेरा इंटरनेशनल में इतना ज्यादा चेंज हो गया। ये प्रॉब्लम कई बार आया है। This is something that is why we try a foreign exposure prior to a major event, and it becomes very important कि हमारे एथलीट्स एक या तो हम कोशिश कर रहे थे, जो नेशनल्स हम इस बार भी करवा रहे थे मैसूर में, we were trying our best to get international classification so that हमारे ये प्रॉब्लम नहीं आई। and this is one exercise we are very seriously thinking। ये हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी गुजारिश रहेगी, मिनिस्ट्री से भी गुजारिश रहेगी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फंडिंग स्लॉट अलग से रखा जाए जहां पे इंटरनेशनल क्लासिफायर्स को नेशनल्स के दौरान ही बुला लिया जाए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हर बच्चा पहले इंटरनेशनल जाए और एक रिस्क ले, और एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर ऑल्सो। एंड क्लासिफिकेशन स्लॉट्स इंटरनेशनली इतनी जल्दी मिलते भी नहीं है, वी हैव टू अप्लाई ऑलमोस्ट 3 months इन एडवांस। तो ये भी नहीं पता लगता कि अगला जो जैसे फजा है या कोई ग्रॉ प्री है उसमें हमें वाकई एक क्वालिफिकेशन स्लॉट मिल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन इन पैरा स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आई रियली थैंक यू गगन शेट्टी सर, व्हाट एन इंफॉर्मेटिव सेशन। Every category, every part of the role of physiotherapist explained so exquisitely. I think ये एक सेशन जो रिकॉर्ड होने के बाद जब अपलोड होगा तो एक रेफरेंस पॉइंट एंड एक डिक्शनरी रेडी टू रेफर एक ऐसा सेशन बनकर आगे आएगा। तो ये आप चिंता न करें अगर आपने कोई स्लाइड मिस करी है, दिस इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, सो इट विल बी ऑन द YouTube. You can go back, you can refer. Once again, my
Thank you. Sandy, I request you to put the Google form link once again in the chat room. Chat box में हम Google form का link डाल रहे हैं, आप उसे जरूर भरिए अगर आपने अभी तक नहीं भरा है. At the end of the sessions, there will be a question and answer round, which will be hosted, proper questionnaire hosted by Sports Authority of India. If you get certain points in that, you will be given an online certification for attending these classes. At the same time, I also remind you that on Monday, we will be having another such session in which we will be specifically talking about rehabilitation, types of exercises, wheelchair skills, as given by Dr. Virendra Vikram Singh. He will also be talking about classifications in table tennis, para table tennis. So these are the topics for our next session. This was a long session, but a very worthwhile session. Thank you so much, Gagan Shetty sir. Thank you, Sports Authority of India. Thank you all. Have a good Sunday, and I will see you on Monday. Thank you. Bye-bye all. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.